Good morning, sir. Hello. Good morning, sir. Good afternoon, everyone. So today we are seeing the difference in simulation and the real hardware or actual hardware. So we simulated that we will start at 1 o'clock. We ended at 1:45. Yes, sir. So this is the real difference between the simulations and the actual results. Right, sir. Right. So good. You can continue, and whatever time we have, you can try to complete in today. If something remains, then tomorrow sometime we can have the discussion. Then we'll call the vice chancellor and the tech coordinator. If they find time, then we can have the interaction with the. Okay. Okay, so this continue. Sure, sir. Okay. So welcome to all of you once again. And today is our last day, formally, as far as the technical part is concerned. So I will try to cover as much content as possible. Also, tomorrow we will have a test. So I will also check with. Okay. So I will also check with Sanjay sir what should be the timing for the test. I think the next test will be for 30. Sorry, for 30 minutes. So let's continue for today's content, and then we can have a small discussion. So this is the slide which is important, as I said. So we covered layer 1, layer 2, layer 3 we started discussing. Layer 4 we'll see a practical implementation today itself. Okay. So let's do it. Okay. Yeah. So as far as electronics background participants is concerned, data analytics and AI is not essential. You have to learn up to layer 3 and layer 4. Again, layer 3 is a very complicated domain, and because it is being used across the world in very advanced level, a basic understanding is also sufficient. As far as the server and clouds are concerned, it is essential that you learn a bit of servers and clouds, because you could not do any practical about servers and clouds because simulation doesn't allow it. That's why I could not cover this. Otherwise, there are a lot of materials available. So briefly, we'll discuss about all these two layers today. And I also have a demonstration of a live project, IoT project, that I'll demonstrate to you here online. Let's proceed. So as I was discussing yesterday, कल जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वही हमारी सबसे ज्यादा यूज होगी आईओटी में. तो तीन जो सब पार्ट हैं, वायर्ड, वायरलेस में डायरेक्ट कनेक्टिविटी और इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी. तो अगर देखा जाएगा तो वायर्ड बहुत कम यूज होगा आईओटी में, बट ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो यूज भी नहीं होगा, कहीं कहीं इसको यूज कर सकते हैं. दूसरा जो है वायरलेस कनेक्टिविटी में भी जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं वो तभी होता है जब हम एक ही हार्डवेयर यूज कर रहे हो या एक ही प्रोडक्ट बना, एक ही आईओटी प्रोजेक्ट हो. अगर मल्टीपल होंगे तो यूजुअली हम इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन ही हम देखते हैं. तो जो इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन थे उसके बारे में हमने ओके.
So everybody seems like very much interested in test. So Sanjay sir, are you there? Yeah. Sanjay sir, can we have test for 30 minutes tomorrow or just for 15 minutes like we had last time? No, 30 we can, because the time is enough, so we can have 30 minutes. Okay, sir. So So only thing, you have to make a hard question or tough question to the participants. sure, sir, sure. So so I'll set 30 questions with the timing of 40 minutes. Will it be fine, sir? Okay, fine. Okay, okay. So participants, so we will have 30 objective type question, and the duration will be 40 minutes. It will not be 45 minutes. It will be 40 minutes, and coding will be there. Uh, Coding parts will be there, but you don't have to write the code. You just have to choose the options. Okay, so whatever coding we have done, like a simple question may be asked, like correct syntax, correct code, any mistake in the code, is something like that. Okay, so such questions may be asked. It will be around for 40 minutes, and today we have less time, but if it's possible, I'll share the previous test that we had. I'll share the same link once again, and I will ask all the participants to just write their name and all details just to check if there is any problem, because we had a lot of problems last time. So this time I will just send you a demo test. In fact, it's the same test that we had last time. I will just uh, uh, allow the test to do. So all the participants will be requested to just fill in the necessary information. You don't have to uh, fill all the question paper. Number one. Number two, if there is any problem, you have to solve it today. क्योंकि जिस टाइप से जिन स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम आया था वो प्रॉब्लम बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है, इफ यू आर यूजिंग इंटरनेट, इतने टाइम से आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइप के इश्यूज आते हैं जो आप इश्यूज मुझे बता रहे थे। तो एक बार आपको ऑप्शन मिल गया था, नेक्स्ट टाइम आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आज जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आज ही सॉर्ट आउट कर लें, कल प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड ऑल्दो दिस इज 40 मिनट्स टेस्ट, बट 45 मिनट्स तक मैं उसको थोड़ा एक्सटेंड करूंगा। ये जो हैबिट है सबमिट करने की लास्ट मोमेंट पे, वो आप मत कीजिएगा। आप लास्ट के बिल्कुल जैसे ही आपका टेस्ट हो जाता है, आप जल्द से जल्द उसको सबमिट कर लीजिएगा। अगर सबमिट होने में कोई इश्यू आता है तो आप जो है दो टैब में एक साथ खोल लीजिएगा। जो लिंक है वो दो टैब में एक साथ खोल लीजिएगा, फिर एक ही लिंक करिएगा, और अगर एक ठीक से सबमिट नहीं हो पा रहा है तो दूसरे में ट्राई करिएगा, राइट? Okay, so And for this, I have one announcement. Yes, sir. Sir, hello, Sudesh. Yes, sir. Please, sir, बोलिए. I have some announcement. Yeah. Yes, sir. Please, आप announce तो कीजिए. अभी 2 दिन से देख रहे हैं कि कुछ कम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, so they can inform their friends and colleagues to join tomorrow's session, because test will be there, and some of our vice chancellor and the tech coordinator also will interact with the students. So it will be required to have the maximum presence, and they can communicate to each other, so that tomorrow most of them can join the session. Okay, sir. So it is requested to all the Is participants. it clear to everyone? It is requested to all participants कि आप कल सभी के सभी जो सेशन है वो ज्वाइन करें, because there will be closing ceremony, test भी होगा. Yeah. So all those who need Yes. certificate, they need to join tomorrow. Okay, so should I start, sir? Yeah, you can. Okay, so अभी जो अब मैं जो आगे डिस्कस करने वाला हूँ वो बेसिकली आपको नॉलेज लेवल पे अच्छा जानना जरूरी है। सो जो इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी है जिसके बारे में बात कर रहा था वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें दो टर्म्स हैं जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, डेट इज वायरलेस सेंसर नेटवर्क और LLNs, लो पावर लॉसी नेटवर्क। ये जो चीजें हैं इसके बारे में आपको ज्यादा जानना होगा, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. I also have a demo today, so I'll try to cover all the content और मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा.
जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी का मतलब जो है, सुरेश मैं अभी वो प्रोजेक्ट आपको शो करूंगा, लाइव प्रोजेक्ट, सो प्लीज वेट फॉर दैट. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 50%. प्रवीण, ओके. सो जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है उसमें जो है बेसिकली जो आपका जो नोड है, जो डिवाइस है, वो डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड है. सो द ऑप्शंस दैट वी हैव आर वाईफाई और मे बी जीएसएम और सिम कार्ड बेस्ड नेटवर्क. ओके, तो उसको यूज करेंगे तो आप डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं. When we talk about indirect connectivity, then we create our own local network, जिसको हम WPAN भी कहते हैं, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क. तो इस पे बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस अभी अवेलेबल है और बहुत सारे चीजें भी मार्केट में आ चुकी हैं. स्टूडेंट लेवल पे बहुत ज्यादा नहीं पहुंचा है क्योंकि IoT अभी भी स्टूडेंट्स लेवल पे इतना पॉपुलर नहीं है. तो स्टूडेंट लेवल पर जो एक मॉड्यूल है जो इनफैक्ट IoT के लिए नहीं बनाया गया था लेकिन पहले से अवेलेबल था, वो ZigBee मॉड्यूल है. तो ZigBee जो है वो आप परचेज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी जो ZigBee होता है वो बेसिकली 2-3 मोड में काम करता है. एक नोड मोड में और एक जो है आपका रूटर मोड में और एक सिंक मोड में. तो उसके मोड्स होते हैं, वो उस मोड पे काम करता है. So IoT devices are not directly connected to internet in indirect connectivity. They are first connected to WSN. वो वायरलेस सेंसर नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं. रूट और सिम का IoT डिवाइस एज WSN एज इंटरनेट कनेक्टेड. सो इसमें एक ऐसा डिवाइस होता है, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, इन जनरल एक ही रहता है, जिसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है और वो इस वायरलेस नेटवर्क का पार्ट होता है. तो इस सिंगल नोड की वजह से सभी लोगों को जो है वायरलेस कनेक्टिविटी जो है वो हो जाती है. जो है वायरलेस कनेक्टिविटी जो है वो आपको मिल जाती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी. सो जितने भी IoT के जो इंडस्ट्रियल लेवल के जो एप्लीकेशंस हैं, दे विल बी मोर ऑन दिस WSN नेटवर्क. और क्योंकि आप इमेजिन कीजिए अगर IoT हर घर तक पहुंच गया, आपके घर पहुंच गया, आपके कैंपस में पहुंच गया, तो इतने सारे डिवाइसेस, IoT डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी और उन सबको डेडिकेटेड इंटरनेट कनेक्शन देना पॉसिबल नहीं होगा. तो ओनली सॉल्यूशन दैट वी हैव इज वायरलेस, दिस WSN वायरलेस सेंसर नेटवर्क. तो what is a wireless sensor network? Wireless sensor network can be defined as a self-configured and infrastructureless wireless networks to monitor physical or environmental conditions such as temperature, sound, vibration, pressure, motion or pollutants, etc. So ये एक ऐसा नेटवर्क है जो सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड है. मतलब इसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, आपने स्विच ऑन किया और ये अपना नेटवर्क खुद ब खुद बना लेता है. इट इज इंफ्रास्ट्रक्चरलेस. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इसको कोई सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप वाईफाई यूज करते हैं तो यू शुड हैव वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल, तभी आप वाईफाई यूज कर पाएंगे. सिमिलरली अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो आपको 3G 4G इनके टावर्स अवेलेबल होने चाहिए. जंगल में आपका फोन या रिमोट एरियाज में आपका फोन काम नहीं करेगा. तो वायरलेस जो सेंसर नेटवर्क कहता है कि ये आपस में जो कम्युनिकेशन करेंगे उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है. हाँ, इंटरनेट कनेक्शन के लिए इनको एक्सटर्नल चीज की जरूरत पड़ेगी, बट जो इंटरनली जब ये कम्युनिकेट करेंगे तो उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होनी चाहिए. और ये जो है ये इनमें इन जनरल आपके पास एक कुछ सेंसर्स होते हैं जो इन सारी चीजों को कम्युनिकेट करते हैं. And to cooperatively pass this data to network to main location or sync where data can be observed and analyzed or sent to server via internet. ठीक है, तो ये जो है आपस में कॉपरेशन के साथ डेटा एक्सचेंज कर सकें. इसमें एक हॉपिंग कॉन्सेप्ट भी होता है जिसपे जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से ये नेटवर्क काफी काम का होता है. तो उसके बारे में अभी डिस्कस करूंगा. तो इसमें बेसिकली एक सिंक नोड होती है जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है और इस सिंक नोड की मदद से जो है हम सभी नेटवर्क को जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं. लेकिन एक चीज समझने बहुत जरूरी है कि जब भले ही हम इंटरनेट कनेक्टिविटी सबको दे रहे हैं, बट ये सारे डिवाइसेस हाई इंटरनेट यूसेज के लिए डिजाइन नहीं होते हैं. जैसे कि आप अपना जो मोबाइल फोन होते हैं उसमें आप बहुत सारा गेम खेलते हैं या फिर आप ब्राउजिंग करते हैं, आप वेबिनार देखते हैं, तो उसमें आपको जो इंटरनेट यूसेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है. लेकिन वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स ऐसे डिजाइन होते हैं कि बहुत ही थोड़ा सा डेटा होना चाहिए. ले फॉर एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा हर मिनट में जो है
हर मिनट में जो है वो आपका बेसिकली जो है आपका डेटा आएगा। उससे ज़्यादा फास्ट हम यूजुअली डेटा नहीं लेते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये इसलिए जानना जरूरी है कि इसी हिसाब से नेटवर्क डिजाइन किया गया है। तो इसमें एक हब कॉन्सेप्ट होता है। हब कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि ये आपका एक डिवाइस है, तो ये हीटिंग डिवाइस है जिसको अपना डेटा इस सिंक तक पहुंचाना है, तभी वो इंटरनेट पे अपना डेटा भेज पाएगा। लेकिन ये जो है डिवाइस, इस डिवाइस में और सिंक में डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड मतलब डायरेक्टली सिंक के वायरलेस नेटवर्क में नहीं है। सिंक जो है और हीट जो है उसका जो वायरलेस नेटवर्क है वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन में नहीं है, राइट। इस वजह से जो है अगर हीट को डेटा भेजना है तो डायरेक्ट नहीं भेजेगा, वो साउंड को भेजेगा, फिर इधर इसको भेजेगा, इसको भेजेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम हब कॉन्सेप्ट कहते हैं और इसके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या है कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नेट पे अवेलेबल है। ऐसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ, जिसको हम क्वांटिकी नाम से उसको कहा जाता है। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोर सी लैंग्वेज में है, काफी डिफिकल्ट है, मुझे भी उसको क्रैक करने में काफी मुश्किल आई थी। क्रैक एज एन उसमें दो मोड है। एक मोड जो आप डायरेक्टली उसमें जैसे कोड्स हैं उसको एज इट इज रन कराइए तो वो इजी पड़ता है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा हैक करने की कोशिश की, उसको क्रैक करके जो है अलग अलग एप्लीकेशन डेवलप करने की कोशिश किया। तो उसमें वो काफी हार्ड था क्योंकि वो कोर सी लैंग्वेजेस पे बेस्ड था और बहुत हाई लेवल लैंग्वेज उसमें यूज की थी। तो इस टाइप के वर्जन अवेलेबल हैं। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क का क्या एडवांटेज हुआ कि तो ये इंटरनेट इस सिंक पर है, हीट पर नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत सारे डिवाइसेस हैं तो ये आपस में एक नेटवर्क क्रिएट करके डेटा जो है सिंक तक भेज सकते हैं। ऋषभ, नो मतलब कम्युनिकेशन तो ये सब आपस में कर ही रहे हैं, बट सिंक जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। तो सो फॉर एग्जांपल हीट को जो है अगर आपको हीट, ये जो डिवाइस है जिसका नाम हीट लिखा हुआ है, मैं इसको बस नाम ले रहा हूँ, हीट जैसे कोई चीज नहीं, तो हीट डिवाइस को इंटरनेट पे कोई डेटा भेजना है। फॉर एग्जांपल इस डिवाइस में टेम्परेचर इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट पे भेजनी है। तो जो हीट है वो टेम्परेचर जो इंफॉर्मेशन है वो पहले साउंड को भेजेगा, साउंड के बाद जो है ये इस बॉक्स को भेजेगा, ये वाला बॉक्स जो है सिंक को भेजेगा, फिर जो सिंक है वो इंटरनेट पे भेजेगा, इंटरनेट पे फिर यूजर पे पहुंचेगा, फिर वहां से यूजर को अगर कोई रिप्लाई करना होगा तो यूजर वहां से रिप्लाई करेगा, आपको सिम को मिलेगा, सिम वापस इस बॉक्स को भेजेगा, फिर वो साउंड को भेजेगा और साउंड वापस हीट बॉक्स को भेजेगा। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है, राइट। रविकांत, आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए रविकांत। ओके, सो इस तरीके से काम करता है। तो रिया हम आगे और देख रहे हैं, तो मैं और चीज इसमें समझा रहा हूँ आपको। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझे आप पूछिएगा। Okay, so wireless sensor network, this one is the most talked about part of IoT। तो अगर IoT में अगर हम बात करें, कुछ नया अगर हो रहा है, ठीक है, देखिए इंटरनेट कनेक्टिविटी पहले से थी, एम्बेडेड सिस्टम बहुत टाइम से यूज हो रहा है, आपके सेंसर्स भी बहुत टाइम से अवेलेबल है, बस इंटरनेट कनेक्टिविटी से इन सबको जोड़ना वाला जो कॉन्सेप्ट है ये IoT ने लाया है। लेकिन जो नई चीज है जो पहले नहीं थी और IoT के लिए स्पेशली डेवलप की जा रही है, इसको इम्प्रूव किया जा रहा है, वो वायरलेस सेंसर नेटवर्क है। इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत होती है। बस ध्रुव देखिए, बेसिकली अब जैसे ध्रुव पूछ रहे हैं कि सर मुंगूस ओएस इज आल्सो यूज्ड फॉर अपलोडिंग डेटा ऑन इंटरनेट ना। देखिए ये जो है ना, ये जो थॉट प्रोसेस है ये आईटी वालों के साथ बहुत बना हुआ है कि सर हम एक मुंगूस ओएस अगर यूज करेंगे तो हम इंटरनेट पे डेटा भेज सकते हैं, या हम पाइथन यूज करेंगे तो इंटरनेट पे डेटा भेज सकते हैं, और सी लैंग्वेज यूज करेंगे तो इंटरनेट पे डेटा भेज सकते हैं, कोई और ओएस यूज करेंगे तो इंटरनेट पे डेटा नहीं भेज पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और ये स्पेशली सीएसआईटी बैकग्राउंड के बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। और मैंने देखा है कि सीएसआईटी के लोग बात करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी एक्स पे काम कर रहे हैं, अब हम शिफ्ट करके टेक्नोलॉजी वाई पे आ गए और टेक्नोलॉजी जेड पे हम काम कर रहे हैं, हम तो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक अच्छा आइडिया देता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने सामने किया तो बता दें। देखिए इंटरनेट पे अगर आपको कोई भी डेटा भेजना है तो आपको सिर्फ आईपी पैकेट्स भेजने होंगे, ठीक है। ये किसी भी लैंग्वेज या ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। आपके पास अगर इथरनेट कनेक्शन है तो इथरनेट कनेक्शन पे डेटा कैसे भेजते हैं, बस ये आपको समझ में आना चाहिए। और अगर आप जो भी डेटा भेजते हैं वो आईपी पैकेट के फॉर्म में भेजेंगे तो आपका जो इथरनेट है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, आप इंटरनेट सर्वर पे डेटा भेज पाएंगे।
अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं और वाईफाई में वायरलेस डेटा कैसे जाता है वो चीज अगर आपको समझ में आ गई, और अगेन आपने सेम आईपी पैकेट जो इथरनेट में आप भेज रहे थे बस आप वायरलेसली भेज रहे हैं, तो भी इंटरनेट पे डेटा चला जाएगा। अगर आपने कोई और मीडियम यूज किया, से जीएसएम यूज किया, 5G 4G मोबाइल फोन यूज किया, तो अगर आप ये बता पा रहे हैं कि आप वाईफाई ये 4G 3G यूज करके कैसे आप जो डेटा है वो भेज सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट पर कैसे आईपी पैकेट आप इंटरनेट पर भेज सकते हैं, तो आप 4G पे भी भेज पाएंगे। कोई भी ओएस, कोई भी प्रोग्रामिंग या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंटरनेट अपलोडिंग डिपेंडेंट नहीं होती। अगर ये किसी भी चीज पे थोड़ी बहुत भी डिपेंडेंट करती है तो ये आपके इथरनेट यूज कर रहे हैं कि वाईफाई यूज कर रहे हैं कि 4G 3G यूज कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है, आपके ओएस पे कभी डिपेंड नहीं करता। तो क्यों है ये सीएसआईटी वाले स्टूडेंट्स या सीएसआईटी बैकग्राउंड के लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये ओएस अपलोड करता है वो ओएस अपलोड नहीं करता, तो इसको भी हम समझते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जितने भी सीएसआईटी के लोग होते हैं वो ज्यादातर लाइब्रेरीज पे काम करते हैं। तो लाइब्रेरी क्या होता है, इनके पास एक डायरेक्ट फंक्शन होता है जिस जिस फंक्शन को वो यूज करते हैं और इंटरनेट पे डेटा पोस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अमेजन वेब सर्विसेज यूज करनी है, अमेजन वेब सर्विसेज ने एक ऐप बना रखा है, उस ऐप में इनको डेटा भेजना है, टेम्परेचर का डेटा भेजना है। तो अमेजन वेब सर्विस में जो है वो आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करेगा, से पाइथन लैंग्वेज में। आप वो लाइब्रेरी जब आप पाइथन में डाउनलोड इंक्लूड करेंगे अपने पाइथन सॉफ्टवेयर में, और उसको आप जब उस फंक्शन को यूज करेंगे तो आप डेटा भेज पाएंगे। तो इससे आगे जो है वो सीएसआईटी वाले नहीं बढ़ते, तो उनको ये लगता है कि पाइथन से वो हो रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि AWS ने अमेजन वेब सर्विस में पाइथन में आपको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड कर दी है जो डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। क्योंकि वो लाइब्रेरी डायरेक्टली प्रोवाइडेड है, उस लाइब्रेरी को आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो, इस वजह से आपको लगता है कि पाइथन कर पा रहा है और डॉट नेट नहीं कर पा रहा, या फिर से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन आपका ऑर्डिनो भी डायरेक्टली डेटा भेज सकता है किसी भी सर्वर पे, बस आपको अगर आपके पास इथरनेट, वाईफाई या 4G 3G के ऑप्शंस अवेलेबल है तो ये कभी भी ओएस डिपेंडेंट नहीं होता है। तो आई होप ये चीज आप समझ पा रहे हैं, और मैं इसको आगे और लेयर 4 को जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं और एक बार अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड या प्रोग्रामिंग बेस्ड या किसी भी चीज पे ये बेस्ड नहीं है कि आप इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे करें, राइट। आई होप ध्रुव मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। और ध्रुव आपकी ब्रांच क्या है? ध्रुव आप किस ब्रांच से हैं? बीसी, ओके ग्रेट। तो मोस्टली मैंने ये सीएसआईटी वालों के में देखा है जो कि ये सोचते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे नहीं काम कर सकते। उसका रीजन ये है क्योंकि वो बैकग्राउंड में जो चीजें चल रही हैं वो नहीं समझते। वो नहीं समझते इसका मतलब ये नहीं है कि सीएसआईटी वालों को उसकी जानकारी कम है, बेसिकली उनका डोमेन अलग है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट और यूजर इंटरफेस, यूएक्स यूआई, ये सारी चीजें डिजाइन करने का जो काम वो करते हैं वो हम ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं करते। तो सिर्फ ब्रांच का डिफरेंस है। तो हम भी इस चीज को समझे कि कोई भी ओएस या कोई भी प्लेटफॉर्म इंटरनेट पे, इंटरनेट के लिए हम यूज कर सकते हैं और बाकी नहीं, ऐसा नहीं है। आप बेसिकली लाइब्रेरी यूज करते हो तो आपके से मुंगूस ओएस में लाइब्रेरी होगी जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, तो आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जिसमें लाइब्रेरी नहीं है आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन आप अपनी खुद की लाइब्रेरी भी बना सकते हो, जो इतना आसान काम नहीं होता है, डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन आप खुद की लाइब्रेरी बना के किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंटरनेट कनेक्टिविटी ला सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए WSN के बारे में सबसे ज्यादा बात किया जा रहा है। इसके बारे में क्यों बात करते हैं कि बिफोर IoT, जैसे मैंने बताया, मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी पहले से थी, लेकिन IoT ने ये बोला कि क्योंकि बहुत सारे हार्डवेयर यूज होंगे और ये बहुत सारे हार्डवेयर सस्ते होंगे, इनमें पावर कंस्ट्रेंट होगा, इनमें पावर इतनी ज्यादा हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर आप ऐसे रिमोट लोकेशन में इसको यूज कर रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, तो वहां पे अगर हम वाईफाई और इथरनेट और जीएसएम जैसे नेटवर्क यूज करेंगे जो पावर हंग्री होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो हम आईओटी में उसको ठीक से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे वायरलेस सेंसर नेटवर्क डेवलप किए जा रहे हैं जो बहुत लो पावर पे काम कर सकते हैं। तो क्या प्रॉब्लम थी, अगर हम बाकी जो स्टैंडर्ड टेक्निक्स यूज हो रही है वो कॉस्टली है, तो वाईफाई मॉड्यूल मार्केट में काफी सस्ता आता है, 350, 400, 500 का शायद आता है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। बट ये भी हो सकता है अगर आप 10,000 क्वांटिटी में कोई डिवाइस बना रहे हैं
एक एरिया में 10,000 डिवाइसेस यूज करें तो 10,000 भी अगर आप वाईफाई मॉड्यूल लेंगे तो हो सकता है वो कॉस्टली पड़ जाए। ये पावर हंग्री होते हैं। एक वाईफाई मॉड्यूल बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, बहुत ज्यादा भी डिफरेंशियल है। अगर आप अपनी बात करें तो मैं कंप्यूटर से वाईफाई मॉड्यूल चला ले रहा हूँ, लेकिन इन जनरल वो पावर हंग्री होते हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है LLNs। तो हमारे पास जिस टाइप का हार्डवेयर हैं वो यूजुअली लो पावर होते हैं, लॉसी होते हैं, मतलब वो कभी भी स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाते हैं, और इस टाइप के नेटवर्क्स को हम यूज करते हैं। तो LLN जो है वो बेसिकली WSN का एक टाइप है। LLN एक WSN का टाइप है, ठीक है, और इस टाइप को हम बेसिकली यूज करते हैं। और इन मोस्ट केसेस WSN विल बी LLN टाइप। ज्यादातर केसेस में LLN जो है आपका WSN टाइप ही होगा। मयंक भार्गव, आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। मयंक भार्गव, ओके। सो इस तरीके से हम LLN को समझें। तो LLN बेसिकली क्या है, ये जो हम पूरा नेटवर्क देख रहे हैं, ये जो हम पूरा नेटवर्क देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हम पूरा देख रहे हैं, इसमें जो डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं, ये डिवाइसेस है लो पावर लॉसी डिवाइसेस, और इस टाइप का जो नेटवर्क बन रहा है वो LLN है। तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क जो है उसमें जब डिवाइसेस बहुत ही लो पावर हो और बहुत ही एनर्जी कॉन्शियस हो, सस्ते मतलब लो कॉस्ट हो, तो हम ऐसे नेटवर्क, ऐसे वायरलेस सेंसर नेटवर्क को LLNs कहते हैं। तो एडवांटेज क्या है वायरलेस के, हम जानते हैं एडवांटेज फ्लेक्सिबल होता है, आपको कहीं भी आप उसको लगा सकते हैं, एक फिक्स लोकेशन देने की जरूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल कैपेसिटी, आप इसकी कैपेसिटी कभी भी बढ़ा सकते हैं, कभी भी घटा सकते हैं। ये स्केलेबल है, आप बहुत ही जल्दी और कम समय में ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस वायरलेस सेंसर नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको इंस्टॉलेशन वगैरह जो चीजें होती हैं वो नहीं करनी पड़ती, आपका जो इंस्टॉलेशन होता है वो काफी क्विक होता है। ओके, सो अब जो हम ये वायरलेस नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा ब्रीफली अपन बात करें तो देयर इज अ कंप्लीट डोमेन अबाउट दिस वायरलेस कम्युनिकेशन। क्योंकि जब आगे बहुत सारे IoT डिवाइस होंगे तो वायरलेस नेटवर्क ही हमारा सबसे क्रिटिकल हो जाएगा। तो कई लोगों ने जैसे बोला कि जो सिक्योरिटी पॉइंट है, तो वायरलेस इज वेरी वल्नरेबल टू सिक्योरिटी, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो एयर में हो रहा है, तो कोई भी हमारा डेटा कैप्चर कर सकता है। तो हमें उसको एनक्रिप्ट करना बहुत जरूरी है, एनक्रिप्टेड डेटा भेजना बहुत जरूरी है, और समय समय पर एनक्रिप्शन एल्गोरिदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन एल्गोरिदम डेवलप होते रहते हैं। तो वो हम एनक्रिप्शन एल्गोरिदम भी अपने नेटवर्क में ऐड करते जा रहे हैं। So there are three broad types of wireless networks. First is low WPAN. So low WPAN stand for low power wireless personal area network. Next is LPWLAN, which is low power wireless local area network. Third is LPWAN, which is low power wide area network. ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो लो पावर लोकल एरिया नेटवर्क जो है, दैट इज बेसिकली अ वायरलेस नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ वायरलेस डिवाइसेस विद इन अ पर्सनस वर्कस्पेस टू एक्सचेंज एंड शेयर डेटा। तो ये जो है ये बेसिकली एक लोकल नेटवर्क होता है, एक छोटा नेटवर्क होता है जिसमें हम डेटा एक्सचेंज करना चाह रहे हैं इंटरनली इन जनरल। तो एग्जांपल्स जैसे अगर हम बात करें तो मैंने जो ये नेटवर्क के बारे में बात करी वो एक लो WPAN नेटवर्क है। ओके, सॉरी। Yes, so there is a small typing mistake. Low power wireless personal area. So this is just a mistake. Okay. तो जो है ये हमारा, जैसे अगर हम अभी जैसे आप कैंपस में हैं, आप UIT IGPV कैंपस में या आप किसी भी कॉलेज कैंपस में, तो आपको अगर आप हॉस्टल में रहे तो हॉस्टल में आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। तो जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ये जो आपका LAN है वो बेसिकली आपका एक पर्सनल एरिया नेटवर्क हुआ। तो ऐसे अगर अपन एक वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाए तो उसको लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इवन जो वाईफाई होता है, जो आप छोटे से एरिया में जो वाईफाई स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसको भी हम लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये शॉर्ट रेंज होता है, इसकी रेंज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, और ये अनलाइसेंस्ड होता है। तो अनलाइसेंस्ड टर्म हम यहाँ पे अभी यूज कर रहे हैं।
अनलाइसेंस टर्म है कि अगर आप वाईफाई यूज करते हैं तो आपको सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई पैसा पे नहीं करना पड़ रहा है। ऐसे भी कुछ नेटवर्क्स होते हैं जिसमें सरकार को पे करना पड़ता है, जैसे आइडिया और एयरटेल आपको मोबाइल फोन की जो कनेक्टिविटी दे रहे हैं, जो 4G 3G दे रहे हैं, वो ऐसे बैंड में है जिससे जो सरकार को उन्हें लाइसेंस फी देनी पड़ती है। और हम भी अब आइडिया वगैरह यूज करते हैं तो हम भी उनके नेटवर्क के लिए पैसे पे करते हैं। उसके बारे में आगे देखेंगे। उसके फीचर्स क्या है कि लो पावर है, लो कॉस्ट है, लो पावर रेडियो मॉड्यूल्स जो है उसमें इसको यूज किया जाता है, और प्रोटोकॉल्स जो हैं दैट इज ये इसके जो लो पावर रेडियो मॉड्यूल्स और प्रोटोकॉल को यूज करता है। अंदरों आई थिंक बाकियों को मेरी आवाज क्लियर है, आप अपनी तरफ से थोड़ा देखें, वॉल्यूम बढ़ा के देखें। तो लो पावर रेडियो मॉड्यूल्स और प्रोटोकॉल ये यूज करता है। यूजुअली लो रेट ऑफ नेटवर्क है, इसमें जो डेटा रेट होता है लो पावर जो है वो जो डेटा रेट आपका इसमें जो होता है वो यूजुअली कम डेटा का होता है। ओके सो जिसके इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है आपका ब्लूटूथ, इवन वाईफाई भी आप इसको एग्जांपल में ले सकते हैं। इसमें मैंने ऐड नहीं किया है बट वाईफाई भी आपका एग्जांपल है। जिगबी, ठीक है, जिगबी जो है एक ऐसा मॉड्यूल है जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। ये अराउंड 1000 रुपए का एक मॉड्यूल आता है और इस मॉड्यूल को जो है आप अपना खुद का वायरलेस सेंसर नेटवर्क भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसमें 2-3 ऑप्शन रहते हैं, नोड ऑप्शन और रूटर ऑप्शन। मैं नाम थोड़ा शायद अलग ले रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है नाम, बट इसकी वर्किंग ऐसी है कि जो नोड होता है वो एंड पे काम करता है और जो रूटर होता है वो रूटर बेसिकली जो है आपका डेटा को रूट करने में हेल्प करता है। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में आपका डेटा रूट करने में हेल्प करता है। तो आप जिगबी को भी यूज कर सकते हैं। 6LoWPAN जो है वो एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। अभी टाइम कम होने की वजह से इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। तो 6LoWPAN और नॉर्मल LoWPAN में ये डिफरेंस है कि आपका जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, तो हम आईपी एड्रेस के बारे में हम जानते हैं कि हर डिवाइस का एक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस। तो हम जब अपना लोकल नेटवर्क बनाते हैं तो लोकल नेटवर्क में हम अपनी मर्जी से एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। बट अगर उस लोकल एड्रेस को हम चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी जाने तो उसको हमें एक एड्रेस देना पड़ेगा। तो 6LoWPAN ने क्या किया है कि लो पावर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल डेवलप किया है जिसमें हम अपने नेटवर्क को भी IPv6 एड्रेस दे सकते हैं। IPv4 नहीं दे सकते लेकिन IPv6 एड्रेस दे सकते हैं। तो वायरलेस हार्ट भी इसी टाइप की टेक्नोलॉजी है बट इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका लो पैन, विच इज आई थिंक दोनों जगह मिक्सअप हो गया। मिक्सअप हो गया, आई एम रियली सॉरी। तो बेसिकली जो आपका LPW लैन जो है, जैसे आपका लैन होता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, उस तरीके से LPW लैन है। ये लो पावर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हम इसको कहते हैं। वायरलेस नेटवर्क विथ अ कवरेज ऑफ लार्ज एरिया सच एज मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो आपका जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का जो टावर होता है, उस टावर में जितने भी एरिया आते हैं उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और इसकी रेंज मीडियम होती है और इसमें लाइसेंस भी आपको पे करना पड़ता है। तो इसमें जो कंपनीज हैं, जितने भी कंपनीज इसमें होंगे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लाइसेंस देना पड़ेगा, तभी वो इस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज LP WAN। तो दिस इज लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये वायरलेस नेटवर्क विद कवरेज ऑफ लार्ज एरिया, तो इसकी जो रेंज होती है वो कई किलोमीटर तक हो सकती है और ये लाइसेंस और अनलाइसेंस बैंड दोनों में यूज किया जा रहा है। इसके एग्जांपल्स जो है वो थोड़ा सा बताना मुश्किल है, जो इसके एग्जांपल है वो अपन अभी देखेंगे। तो ये जो है ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए बेटर है। लो रेट ऑफ मशीन्स में हम इसको यूज कर सकते हैं और इसमें बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कहाँ पे हम यूज करते हैं, जब बहुत सारे डिवाइसेस हो, बहुत बड़े एरिया में फैले हो और डेटा रेट अगर आपका बहुत कम हो, ठीक है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो है लोरा जो है एक ऐसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें आप पूरे शहर में एक ही टावर से कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर पहाड़ वहाड़ जैसे सिचुएशन ही, जैसे भोपाल में पहाड़ है, तो अगर पहाड़ नहीं की सिचुएशन अगर अपन इग्नोर करें तो 1 या 2 या दिल्ली जैसे बड़े एरिया में भी मुश्किल से 2-3 टावर में आप पूरे शहर को कवर कर सकते हो।
लेकिन अगर इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत लो डेटा रेट सपोर्ट करता है। तो इसमें एक एप्लीकेशन अपन ले सकते हैं, जैसे जो दिल्ली में पानी की जो सप्लाई होती है, उसकी पानी की जो सप्लाई है उसमें मीटर्स लगे होते हैं। आई थिंक भोपाल में भी पानी की सप्लाई के लिए वाटर मीटर लगे हुए हैं। तो वाटर मीटर में अगर हम लोरा इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें हमें महीने में एक बार ही रीडिंग लेनी है आपके हर मीटर की कि कितना पानी कंज्यूम हुआ है, तो इस टाइप के एप्लीकेशंस के लिए लोरा या फिर एलपी वैन एक अच्छा सॉल्यूशन है। तो इसके एग्जांपल जो है LTE-M, तो LTE-M बेसिकली 4G 3G टाइप का एक ऑप्शन है। NB-IoT, ये लोरा, तो ये सारे कुछ एडवांस ऑप्शन है, तो इसको अभी मैं डिटेल्स में डिस्कस नहीं करूंगा। बट लोरा जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, जो कि बहुत ही लो पावर में बहुत लॉन्ग रेंज जो है आपको नेटवर्क प्रोवाइड करता है। तो इसमें डिफरेंट टोपोलॉजीज होती हैं। तो यहाँ पे जो मैं टोपोलॉजी यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, तो एक होती है स्टार टोपोलॉजी और दूसरा होता है, इसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी। तो मेन हम स्टार समझ लेते हैं। एक्सटेंडेड स्टार में आप देख ही रहे हैं किस टाइप का यहाँ पे नेटवर्क बना हुआ है। तो वाईफाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो वाईफाई जो है, अगर आपको वाईफाई कनेक्टिविटी अपने फोन, मोबाइल फोन या किसी को भी देनी है, तो आपका फोन और वाईफाई दोनों आपस के वायरलेस रेंज में होने चाहिए। मतलब आपका जो डिवाइस है वो डायरेक्ट सिंक से कनेक्टेड होता है। तो इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें रेंज कम मिलती है, क्योंकि आपका जो मेन वाईफाई डिवाइस है उसकी रेंज जितनी होगी उसी रेंज पर आप इसको काम करवा सकते हैं। तो ये स्टार टोपोलॉजी होती है। तो स्टार टोपोलॉजी भी वैसे तो IoT में यूज की जा सकती है, काफी यूज होगी, बट ब्रॉड जो अगर बहुत बड़े एरिया में, एक फिजिकल एरिया में अगर कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें जो है मेश टोपोलॉजी जो है वो ज्यादा यूज होगी। तो मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपके ये मेश होते हैं, मतलब हर डिवाइस किसी से भी कनेक्टेड होता है, एक मेश टाइप का ये बनाता है, और उसमें एक रूट होता है, एक सिंक होता है, जिसकी मदद से वो एक्सटर्नल दुनिया से या इंटरनेट की मदद से बाकी चीजों से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर इंटरनेट यूज नहीं कर रहे हैं तो इस गेटवे को हम एक कंप्यूटर भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने कैंपस में एक लोकल नेटवर्क क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसमें आप कैंपस के अंदर ही जो है लोकल डिवाइसेस को ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं, बट आप इंटरनेट यूज नहीं करना चाह रहे, तो आप एक कंप्यूटर से अपना एक डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, और वो जो डिवाइस है वो एक मैश टोपोलॉजी में सभी अदर डिवाइस के साथ एक वायरलेस नेटवर्क बना रहा है। तो इस तरीके से हम उसमें काम कर सकते हैं। तो इस डिवाइस को अगर इस डिवाइस से मैसेज भेजना है तो वो यहाँ से भेज सकता है, यहाँ से भेज सकता है और यहाँ से भेज सकता है, या फिर वो इसके और इसके थ्रू भी भेज सकता है। तो इसके जो एल्गोरिथम होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वो एल्गोरिथम को खुद ब खुद डिसाइड करना होता है कि उनको ये पाथ लेना है कि ये पाथ लेना है। अगर कोई बीच में अचानक से ये डिवाइस बंद हो जाए तो उसको पाथ चेंज भी करना होता है। तो बहुत सारी चीजों का जो ध्यान उनको दिस इज अबाउट मेश टोपोलॉजी। अब इसको थोड़ा सा ब्रीफली मैं डिस्कस करूं, ये एक बहुत ही कोर टॉपिक है स्पेशली फॉर CSID डिपार्टमेंट्स के लिए, और जो नेटवर्किंग डोमेन में काम करते हैं इसी डिपार्टमेंट से भी आप नेटवर्किंग में जा सकते हैं, बहुत ही कोर एरिया है। तो OSI मॉडल जो है ये क्या है, जरा हम इसके बारे में डिस्कस करें। तो OSI मॉडल जो है ये बेसिकली आपको ये बताता है कि अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क पर अगर कम्युनिकेट करना है तो आप कैसे करेंगे, किन किन लेयर्स को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वेब पेज यूज करते हैं तो उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें होती है, या आप अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप में हेलो टाइप करते हैं तो हेलो एज इट इज नहीं जाता, ठीक है। तो ये सारी लेयर्स डेवलप की गई हैं, जिसमें अलग अलग चीजें इसमें आती हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा लेयर क्या काम करेगी। तो से फॉर एग्जांपल जो एप्लीकेशन लेयर है उसका काम होगा कि यूजर से कैसे इंटरेक्ट करना है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इसको किसी प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करेगा। नेटवर्क लेयर ये डिसाइड करेगा कि हमें कौन कौन से नेटवर्क पे भेजना है। फिर आपका जो डेटा लिंक लेयर या फिजिकल लेयर है वो एक्चुअल डेटा भेजेगा। तो उसका एक छोटा सा अपन एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। तो जो इसका छोटा सा एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो है कि आपका जो एप्लीकेशन लेयर जो है, तो इसमें HTTP COAP जो है, ये जो प्रोटोकॉल है ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। UDP और TCP जो आपने सुना होगा, जिसके बारे में डिस्कस भी करूंगा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। नेटवर्क या रूटिंग लेयर पे जो है वो IP या RPL काम करता है। एडेप्टेशन लेयर जो है वो 6LoWPAN है, जो कि IPv6 को लो पावर नेटवर्क पे काम करता है। तो मैक लेयर में CSMA होता है। और रेडियो लेयर जो है बेसिकली आपका जो है फिजिकल लेयर है, मतलब एक्चुअली बाइनरी डेटा कैसे जा रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। तो आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा अभी इमीडिएटली कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च एरिया है,
बट इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सारी चीजें अगर आपको नहीं समझनी है तो आप डायरेक्ट मॉड्यूल यूज कर सकते हैं और मॉड्यूल सारी चीजें ये हैंडल खुद ब खुद कर सकते हैं. Okay, so this was about layer 3. So I'll just we will just switch to layer 4. ओके, सो लेयर 3 के बारे में जैसे मैंने डिस्कस किया, अगर मैं उसको शॉर्टकट में अगर आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो लेयर 3 जो है ये मेक श्योर करता है कि जो बहुत सारे IoT डिवाइसेस हैं उनको हम वायरलेस फॉर्म में कनेक्ट कर सकें. उसमें हम एक सिंपल प्रोटोकॉल लगा सकते हैं, हम एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोटोकॉल लगा सकते हैं और हम एक स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड प्रोटोकॉल लगा सकते हैं जिसमें हम IPv6 की मदद से दुनिया में से कहीं पे भी जो है अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये ब्रीफली मैंने इसको डिस्कस किया. अब हम आ जाते हैं लेयर 4 पे, जहाँ पे आप यूजर इंटरफेस कर रहे हैं और यहाँ पे आपके अमेजन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एज़ूरे, यूबीडॉस, थिंगस्पीक्स, इस टाइप की जो सर्वर्स या क्लाउड्स है उसके बारे में हमारी बात होती है. ओके, सो करण पूछ रहे हैं, सर कैन यू प्लीज वंस अगेन एक्सप्लेन LPWLAN. ओके, तो ये जो है आपका जो लैन नेटवर्क होता है, जैसे कि हमने बोला कि जो आपके कैंपस में जो लैन आप यूज करते हो उसी का वायरलेस वर्जन है और इसी को लो पावर पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आपके जितने भी मोबाइल फोन रिलेटेड चीजें हैं 3G, 2G और 4G, ये सारे LPWLAN में आते हैं. LPWLAN में ये सारे डिवाइसेस आते हैं. ठीक है, तो ये ऐसे काम करते हैं. तो मतलब अगर ब्रॉडली देखा जाए तो ये वायरलेस नेटवर्क ही है, पर इसकी रेंज थोड़ी सी सिटी वाइड है. मतलब एक शहर वाले एरिया में एक या कुछ किलोमीटर एरिया में जो है ये काम करता है. और ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये लो पावर पे काम करना चाहिए और ये वायरलेस होना चाहिए. तो ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी है उसको हम LPWLAN कहते हैं. होप करण इट्स क्लियर. ओके, तो अब हम लेयर 4 की बात करते हैं. तो जो लेयर 4 है वो क्या कर रहा है? लेयर 4 इज द रिसीवर एंड ऑफ ऑल दिस डेटा. आपके जो सेंसर्स हैं, आपका जो प्रोसेसर है या आपका जो वायरलेस कनेक्टिविटी है, ये सारा जो इतनी हम मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत हम किसके लिए कर रहे हैं? हम कर रहे हैं यूजर के लिए, आप लोगों के लिए कर रहे हैं जो इन सारी फैसिलिटी को यूज करेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका एंड ऑफ द मंथ आ जाता है, अगर आपको डेली पता रहे कि आज आपने इतनी बिजली खर्च करी, कल इतनी बिजली खर्च करी, आज आपका इतना बिल आया, तो आप अपने कम से कम घर में जो है वो यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम बचत करें. या अगर अपन एक स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो स्मार्ट सेंसर हम हर तरफ लगा सकते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली अगर फायर लगती है तो फायर की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी. फायर के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा किसी को. और बहुत सारे सेफ्टी सिस्टम्स लगाए जा सकते हैं. आपकी जो अटेंडेंस आप चाहें तो RFID बेस स्विच कर सकते हैं. अभी भी कॉलेज लेवल में सभी कॉलेजेस में जो अटेंडेंस लगती है वो मैनुअली लगती है जिसमें काफी टाइम कंज्यूम होता है. तो फिंगरप्रिंट बेस्ड जो है वो अटेंडेंस सिस्टम जो है वो एम्प्लॉयज लेवल पे ऑलरेडी आ चुका है. लेकिन पोस्ट कोविड अब फिंगरप्रिंट इज आउट ऑफ क्वेश्चन नाउ. कि फिंगरप्रिंट में सभी फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो इट्स नॉट सेफ. तो वी अगेन हैव टू कम बैक टू द आवर बेसिक टेक्नोलॉजी लाइक RFID कार्ड्स, जिसकी मदद से अटेंडेंस आपकी लगेगी और वो सर्वर पे पोस्ट हो जाए और जो भी आपके बॉस हैं या जो भी आपके प्रिंसिपल हैं उनको सारी अटेंडेंस का अपडेट मिलता रहे. तो बेसिकली सारा जो काम चल रहा है वो लेयर 4 के यूजर के लिए चल रहा है. राइट, what is layer 4? Layer 4 analyze, present data, provide user interface for controls और action. So layer 4 जो है जो भी डेटा मिला उसको एनालाइज करता है, उसको प्रेजेंट करता है और यूजर को कंट्रोल्स और एक्शंस ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. दिस इज द ओनली लेयर विच एक्चुअली इंटरेक्ट्स विद यूजर ऑफ IoT यूजिंग वन और मोर इंटरफेसेस. तो ये एकमात्र ऐसी लेयर है चारों लेयर में से जो कि डायरेक्ट यूजर से इंटरेक्ट करती है. यूजर को कुछ नहीं पता होता है कि बैकग्राउंड में क्या, एक जो यूजर है जो IoT के बारे में इतनी डिटेल के बारे से नहीं जानता है, उसको कुछ नहीं पता हो रहा है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, लेकिन उसको सारी इंफॉर्मेशन लेयर 4 की मदद से मिलती है. ठीक है, तो लेयर 5 जो है इसी लेयर से जो डेटा है इस पे एडवांस कॉन्सेप्ट लाइक डेटा एनालिटिक्स, AI अगर आप लगा देते हैं तो उसको मैं लेयर 5 कह रहा हूँ. तो लेयर 5 हम इस सेशन में वैसे भी डिस्कस नहीं करेंगे ना. जब हम लेयर 4 की बात करते हैं तो जो टेक्नोलॉजी जो बेसिकली यूज हो रही है यहाँ पे हमें समझना जरूरी है कि क्यों हमारा जो कनेक्टिविटी है वो किसी भी OS या किसी भी लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है, वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है. और वो टेक्नोलॉजी क्या है? IP, इंटरनेट पैकेट. ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, अगर हम कोई भी डेटा अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल में भेज रहे हैं तो उसको हम IP कहते हैं. ध्यान रहे
ये आईपी हमें सिर्फ ये बताता है कि आपको बाइनरी फॉर्म में डेटा कैसे भेजना है। ये नहीं बोलता कि आपको पाइथन यूज करनी है, डॉट नेट यूज करनी है, कोई भी चीज यूज करनी है। फिर इसी तो जो आईपी इज बेसिकली, इसका एक टर्म यूज होता है डेटाग्राम। So datagram is a term used for a complete packet which has a data and some other information, right? तो हमारा मेन काम क्या है, हम जो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं उसमें बेसिकली हमारा मेन काम एक ही है, और वो है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो आईपी में क्या इसमें अलग है, इस दुनिया में कहीं भी अगर आप डेटा भेजना चाहते हैं तो उसका एक एड्रेस होना चाहिए। तो आईपी में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक आपका डेटा और एक आपका हेडर, जिसमें बेसिकली एड्रेस होता है। तो आईपी ने बस आपके डेटा का एक एक्सटेंशन दिया है, जिसमें उसने हेडर प्रोवाइड किया है, एड्रेस प्रोवाइड किया है, प्लस बाकी कुछ चीजें प्रोवाइड की है, ताकि जो अलग अलग नेटवर्क है, जैसे अभी आप कोई लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, कोई अपने डेस्कटॉप से कनेक्टेड है, कोई वाईफाई से कनेक्टेड है। हमारे यहाँ वाईफाई कनेक्टेड जो है वो ऑप्टिकल केबल के थ्रू हो रहा है, कोई 4G से कनेक्टेड है, तो सभी लोग आईपी यूज कर रहे हैं। तो इन अलग अलग डिफरेंट टाइप डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आईपी चल जाए, तो आईपी ने वो थोड़े बहुत और फीचर्स उसमें ऐड कर रहे हैं। अब आईपी इज ऑल अबाउट डेटा। तो अगर मैं आईपी को कंपेयर करूं तो आईपी इज लाइक कैरेक्टर्स, ठीक है। आईपी इज लाइक कैरेक्टर्स। जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं या हिंदी में बात करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो जो अक्षर होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, उसको आप आईपी मानिए, वो सिंपल डेटा है। टीसीपी आईपी और यूडीपी आईपी इज लाइक वर्ड्स, ठीक है। हम अलग अलग वर्ड्स, तो इसी डेटा को यूज करके हम अलग अलग वर्ड्स पे हम काम कर रहे हैं। तो यूडीपी जो बोलता है, यूडीपी डेटा भेज रहा है। अब आपने जैसे डेटा भेजा, ठीक है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनी कम्युनिकेशन इन आईपी इज अनरिलायबल। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज दिस अनरिलायबल कम्युनिकेशन? आपने आईपी में बोला कि अमेरिका का एक आईपी एड्रेस आपने डाल दिया, और आपने पैकेट में आपने उसका डेटा भर दिया। उसको इस तरीके से लीजिए कि आपके पास एक चिट्ठी है, और जो चिट्ठी है उस चिट्ठी में आपने अमेरिका का एड्रेस डाल दिया, उसके अंदर आपने चिट्ठी में अपना एक लेटर रख दिया, और आपने इसको पोस्ट बॉक्स में पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक बार हमने पोस्ट बॉक्स में अगर पोस्ट कर दिया तो वो चिट्ठी यूएस पहुंच ही जाएगी। बहुत ही कम रेयर ऐसे चांसेस होंगे जहां पे डेटा नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि आईपी इज वेरी अनरिलायबल। मतलब आईपी का जो है सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया है कि अगर आपने लेटर बॉक्स में चिट्ठी डाली भी, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो चिट्ठी पहुंचेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये आपके प्रोटोकॉल को मेक श्योर करना है कि वो चिट्ठी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, आप ध्यान दें। तो ये कैसे होंगे? आपको अपने प्रोटोकॉल में मेक श्योर करना है कि वहां से एक्नॉलेजमेंट आए। तो जैसे आईपी से आपने डेटा अगर यूएस भेजा है, तो वहां से अगर डेटा वापस आ रहा है तो उसको हम एक्नॉलेजमेंट करते हैं। तो आपको अपने प्रोटोकॉल में ये सारी चीजें का ध्यान रखना पड़ता है। तो यूडीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो एक्नॉलेजमेंट बेस्ड नहीं है। ये क्या बोलता है कि डेटा भेज दो, और जो पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा जो है, जैसे अगर आपका बहुत बड़ा डेटा है, आप बहुत बड़ा मैसेज भेजना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जो बहुत बड़ा डेटा है उसको अगर आप अलग अलग वर्ड्स में तोड़ेंगे, तो वो सारे वर्ड्स आप एक साथ नहीं भेज सकते। आप तो एक एक कैरेक्टर ही भेज रहे हो, ठीक है। आईपी में आप एक एक कैरेक्टर भेज पा रहे हैं। तो आपका जो पूरा वर्ड है, आपको हेलो भेजना है, तो आप हेलो नहीं भेज पा रहे हो। आप पहले एच भेजोगे, फिर ई भेजोगे, फिर एल भेजोगे, फिर एल भेजोगे, फिर ओ भेजोगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो आप जो भी डेटा भेजना चाह रहे हैं उसको आपको फ्रेगमेंट करके भेजना है। तो आपका डेटा को पहले फ्रेगमेंट करना पड़ता है और फिर भेजना होता है। तो यूडीपी ये भी मेक श्योर नहीं करता, अगर आप HELLO भेज रहे हैं तो H पहले जाएगा, E बाद में जाएगा, L उसके बाद जाएगा, और सबसे आखिरी में O जाएगा। बट आईपी जैसे जैसे मैंने बताया, आईपी अनरिलायबल है। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारा डेटा पहुंचे, ये भी जरूरी नहीं कि वो सेम ऑर्डर में पहुंचे। हो सकता है एल पहले पहुंच जाए, ओ फिर पहुंचे, फिर एच पहुंच जाए, फिर ई पहुंच जाए, ठीक है ना। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन एंड डीफ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो फ्रेगमेंट मतलब बड़े वर्ड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना और उसको बाद में वापस जोड़ लेना। तो ये सारी फैसिलिटी कि रिलायबली डेटा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, यूडीपी मेक श्योर नहीं करता। क्या प्रॉपर्ली फ्रेगमेंटेड और डीफ्रेगमेंटेशन प्रॉपर्ली होगा, यूडीपी मेक श्योर नहीं करता। टीसीपी आईपी जो है ये सारी चीजें मेक श्योर करता है। टीसीपी आईपी एक कनेक्शन बनाता है। तो कनेक्शन बनाने का मतलब ये है कि आपने फोन कॉल किया, और जब तक सामने वाला फोन कॉल नहीं उठाएगा तब तक हमारा कोई डेटा हम भेज नहीं सकते। ये टीसीपी आईपी कहता है, ठीक है। जबकि जो एसएमएस वाला ऑप्शन है या व्हाट्सएप वाला ऑप्शन है, उसमें आपने मैसेज भेज दिया है, सामने वाले ने उसको पढ़ा नहीं पढ़ा ये हमें नहीं पता। तो व्हाट्सएप में अगर आप रीड वाला ऑप्शन हटा दें कि आपका जो सामने वाला पर्सन है उसने आपका मैसेज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन अगर वो ऑप्शन अगर हम हटा दें, तो वो उस जैसी फैसिलिटी को हम समझने की कोशिश करें तो वो यूडीपी है। और टीसीपी आईपी जो है वो बिल्कुल मेक श्योर करता है
कि डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अगर डेटा नहीं पहुंचा तो ये फिर से भेजेगा, क्योंकि आईपी बाय डिफॉल्ट रिलायबल नहीं है। और तो इसलिए हमें टीसीपी आईपी को मेक श्योर करना पड़ेगा डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, प्रॉपर ऑर्डर में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली हम तो हमेशा चाहेंगे कि हमारा डेटा रिलायबली पहुंचे, तो हम क्यों यूडीपी यूज करेंगे। तो बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि जब टीसीपी आईपी जैसा प्रोटोकॉल आप फॉलो करते हैं तो ये काफी हैवी होता है, मतलब इसमें बहुत सारा डेटा भेजना पड़ता है, इसको सारे ट्रैक रखना पड़ता है कि पहला डेटा कौन सा था, दूसरा डेटा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, फ्रैगमेंटेशन डिफ्रैगमेंटेशन करना है, कोई डेटा नहीं पहुंचा तो उसको रिट्रांसमिशन करना है। तो टीसीपी आईपी हैवी होता है और यूडीपी जो है वो जो है बिल्कुल लाइट वेट होता है। तो जहाँ पे क्रिटिकलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल डेटा नहीं हम भेज रहे हैं, एक हाथ दो डेटा 10-20 में से एक हाथ दो डेटा पहुंचे नहीं पहुंचे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट स्पीड इंपॉर्टेंट है तो हम यूडीपी यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल, या वॉइस अटेंड कर रहे हैं, तो इसमें बीच बीच में अगर थोड़ा सा डेटा गायब हो जाए या एक हाथ स्लाइड मिस हो जाए तो चल सकता है, लेकिन हमारा डेटा लेट से पहुंच रहा हो या बहुत टाइम लग रहा हो वो हमें नहीं चल सकता। तो इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक सवाल इसमें यह भी उठता है कि क्यों आईपी अनरिलायबल है, क्यों इसको रिलायबल हम नहीं बनाते, क्योंकि इसका रीजन है आईपी बहुत अलग अलग नेटवर्क से कनेक्टेड है। आपका वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है, आपका 3G 4G से कनेक्टेड हो सकता है, आपका ऑप्टिकल केबल से कनेक्शन हो सकते हैं, आप इंटरनेट इतने अलग अलग सोर्सेज से यूज कर रहे हैं, और इतने अलग अलग सोर्सेज जो हैं वो बेसिकली रिलायबल हो ये जरूरी नहीं। आपका मोबाइल का नेटवर्क ठीक से नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर आपके वाईफाई कनेक्टिविटी खराब है, या कोई आप सॉफ्टवेयर सेंड कर रहे हैं, आप कोई फाइल सेंड कर रहे हैं, बीच में नेट खत्म चला गया है, तो इस वजह से आईपी ऐसे नेटवर्क पे बेस्ड है जो रिलायबल नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट आईपी कभी भी रिलायबल नहीं बन सकता, हमें हायर लेवल प्रोटोकॉल्स ही बनाने पड़ेंगे जो इसको रिलायबल बनाए। तो यहाँ हमने समझा कि आईपी जो है बेसिकली एक कैरेक्टर है, टीसीपी आईपी एक वर्ड हो गया। अब एचटीटीपी, सीओएपी, एमक्यूटीटी ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारा एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बनाते हैं और ये जो है ये फाइल्स सेंड करते हैं और बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें सेंड करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ डेटा पे बेस्ड नहीं है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एमक्यूटीटी, सीओएपी, एचटीटीपी ये सारी चीजें पहले टीसीपी आईपी या यूडीपी में कन्वर्ट होती हैं और फाइनली आईपी में कन्वर्ट होती है। तो जब आप मान लीजिए एचटीटीपी यूज करते हैं, एचटीटीपी इज नथिंग बट वेबसाइट में आप जानते हैं कि एचटीटीपी टाइप करते हैं आप, राइट। तो वो एचटीटीपी जो नाम आप जो टाइप कर रहे हो बेसिकली एक एचटीटीपी एड्रेस हो गया। तो आप अपने आईपी एड्रेस नहीं डाल रहे हैं, ठीक है ना। आप जिस भी जगह आप अगर मैसेज भेजना चाहते हैं तो उसमें आईपी एड्रेस नहीं डाल रहे हैं, आप उसका एचटीटीपी एड्रेस डाल रहे हैं, और एचटीटीपी खुद ब खुद हैंडल कर रहा है कि कैसे उसको टीसीपी आईपी में कन्वर्ट किया जाए और कैसे आईपी एड्रेस उसमें लाया जाए। ये सारी हैंडलिंग एचटीटीपी खुद ब खुद कर रहा है जो आपसे हिडन है। तो वहीं पे जब आप कोई पाइथन की लाइब्रेरी यूज करते हैं जो डायरेक्टली एचटीटीपी फंक्शन दे देता है, तो आपको लगता है कि वो पाइथन की लाइब्रेरी से आप इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, कोई और लाइब्रेरी से यूज नहीं होगा, बट अल्टीमेटली कम्युनिकेशन आईपी से हो रहा है और टीसीपी आईपी वाली सारी चीजें हैं। तो ऐसा और कोई प्रोटोकॉल जो आपको एचटीटीपी फीचर सपोर्ट करेगा वो भी आप यूज कर सकते हैं, पाइथन या कोई लैंग्वेज डिपेंडेंसी आपकी नहीं। तो ये था लेयर 4। अब इसमें हम थोड़ा और डिटेल लेवल पे जाते हैं। तो आईपी जो है, ठीक है, तो आईपी इज बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल is a numerical label assigned to each device connected to a computer network that uses the internet protocol for communication। तो ये एक एड्रेस है जो हर एक कंप्यूटर को असाइंड है जो भी इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट से कनेक्टेड है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका मोबाइल फोन, आपका डेस्कटॉप, हर एक चीज जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एड्रेस यूनिक होता है और उस एड्रेस से ही डेटा एक्सचेंज सारा चलता है। तो आईपी जो है, आईपी बेसिकली IPv4 जो है उसका एड्रेस लेंथ कम होती है, 32 बिट का होता है, और इसको कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं 172.16.254.1, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये 88 बिट जो है, 88 बिट को हम डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हैं। तो 1 का मतलब 8 बिट में 1 है, ये 8 बिट में 254 है, ये 8 बिट फॉर्मेट में 16 है, 8 बिट फॉर्मेट में 170। तो आपका जो IPv4 एड्रेस है वो 32 बिट का होता है, और इसीलिए क्योंकि ये 32 बिट बहुत कम पड़ते हैं, इसमें नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस आपके कम होंगे, तो इसलिए हमें IPv4 में एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक आईपी एंड डायनामिक आईपी। तो स्टैटिक आईपी जो होता है वो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें जो है आप फिक्स एड्रेस यूज करते हैं। तो जब आप किसी वेबसाइट पे पिंग करते हैं या किसी
किसी ऐसी वेबसाइट पे पिंग करते हैं जहाँ पे जिसका एड्रेस फिक्स है, तो वो स्टैटिक आईपी पे काम करता है। तो अगर आपको स्टैटिक आईपी बेस्ड कोई भी काम करना है, आपके सर्वर स्टैटिक आईपी पे काम करते हैं, तो देखिए आईपी आपका एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, सर्वर क्या है? जो नॉन सीएसआईडी सर्वर हमें समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप google.com एंटर करते हैं, तो doodle.com आपने एचटीटीपी में एंटर किया, तो एचटीटीपी गूगल का, एचटीटीपी को गूगल का आईपी एड्रेस ऑलरेडी पता है। तो गूगल, तो जो आपका एचटीटीपी है, आपके कंप्यूटर जिस भी इंटरनेट कनेक्टिविटी से कनेक्टेड है, चाहे वो वाईफाई से है, किसी पे भी है, तो आपका कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली उस नेटवर्क पे आपका आईपी एड्रेस के साथ आईपी पैकेट सेंड कर देगा। अब जब ये आपका जो आईपी पैकेट है आपके आइडिया या बीएसएनएल के ऑफिस में पहुंचेगा, तो वो आईपी पैकेट का एड्रेस देखेगा, और एड्रेस से उसको पता चला कि गूगल तो यूएसए में है, तो वो आगे की पूरा प्रोसेस फॉलो करेगा, जिसमें आपका डेटा सबसे पहले बॉम्बे पहुंचेगा ऑप्टिकल केबल से। ध्यान रखिए, अगर google.com आप टाइप कर रहे हैं, अगर इंडिया में सर्वर नहीं है, गूगल के इंडिया में सर्वर हो गए हैं, तो अज्यूम करें कि गूगल का इंडिया में सर्वर नहीं है, तो आपका भोपाल का जो डेटा है वो पहले बॉम्बे जाता है। बॉम्बे के बाद वो ऑप्टिकल केबल से समुंदर के नीचे से केबल्स की मदद से पहुंचेगा अफ्रीका, अफ्रीका से या फिर अरब से अगेन ऑप्टिकल केबल से वो पहुंचेगा यूरोप, और यूरोप से फिर अगेन यूरोप के बाद वो समुंदर में जो ऑप्टिकल केबल है उससे वापस अमेरिका पहुंचेगा, और अमेरिका में फिर एक जो गूगल का जो सर्वर का जो फिजिकल जो आपकी एक एक्चुअल लोकेशन है, जो एरिया है, जैसे न्यूयॉर्क में मान लीजिए है, तो न्यूयॉर्क पहुंचेगा। तो ये जो पूरा काम है कि आपके भोपाल से न्यूयॉर्क को जो डेटा लेके जा रहा है, ये आपका सारा ऑप्टिकल केबल या आपका आइडिया नेटवर्क या बीएसएनएल नेटवर्क या इंटरनेशनल जो भी कंपनी है वो पहुंचा रही है। अब जो डेटा जो था आपका आईपी डेटा, वो जब गूगल के पास पहुंचा, तो गूगल के पास पहुंचा मतलब गूगल के पास भी ऐसे एक इंटरनेट कनेक्शन जिसने उस डेटा को ले लिया। अब वहां पे बहुत ही मैसिव कंप्यूटर्स हैं जो इस डेटा को प्रोसेस करके आपको रिप्लाई बैक करते हैं। तो जो मैसिव कंप्यूटर जो आपके हुए वो होते हैं सर्वर्स, ठीक है। तो सर्वर आर बेसिकली मशीन्स, कंप्यूटर्स। तो आप अपने घर में भी सर्वर बना सकते हैं। तो जो आईटी वाले लोग हैं उनको पता होता है कि सर्वर कैसे बनाते हैं। आप अपने कंप्यूटर के सर्वर बना सकते हैं, आप एक लोकल सर्वर बना सकते हैं, आप एक ग्लोबल सर्वर बना सकते हैं। तो सर्वर कुछ नहीं है, एक ऐसा पर्सन है जो आपके क्वेश्चन का जवाब देता है, ठीक है। तो जैसे आपने google.com टाइप किया, एचटीटीपी में एंटर किया, तो आप गूगल का पेज की इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, तो गूगल आपको पेज की इंफॉर्मेशन जो है आपको भेज रहा है। तो आई होप अभी आप आईपी और सर्वर को समझ पाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर जो आपका एड्रेस है वो अगर IPv4 में है तो आपका एड्रेस कुछ ऐसा होगा। नाउ अगर आप google.com पे जाएंगे तो दुनिया में सभी लोग google.com पे जा पा रहे हैं, तो गूगल का जो एड्रेस है वो फिक्स होना चाहिए, वो बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बार बार चेंज होगा तो कोई गूगल को खोज नहीं पाएगा, हर बार उसका नया नया एड्रेस जो है HTTP लेयर को हर बार नहीं पता होगा कि गूगल का एड्रेस क्या है। बट जब आप इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है, आप अपने मोबाइल फोन से करते हैं या डेस्कटॉप से करते हैं, कहीं से भी करते हैं, तो आपका जो एड्रेस है वो हर बार अलग अलग होता है। वो इसीलिए क्योंकि आईपी एड्रेस IPv4 में कम है, इतने ज्यादा आईपी एड्रेस है नहीं, लिमिटेड आईपी एड्रेस है, तो हम सबको परमानेंट आईपी एड्रेस नहीं दे सकते। तो जैसे जैसे हम लॉग इन करते हैं, जैसे हमने मान लीजिए सुबह 10 बजे लॉग इन किया, तो हमें एक टेम्पररी आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया कर दिया जाता है। तो जो आपका टेम्पररी आईपी एड्रेस है उसको हम डायनामिक आईपी कहते हैं, ठीक है। और इस टाइप की चीजों को हम यूज करते हैं। तो अनुराग पूछ रहे हैं सर, कैन वी यूज ओपनसीवी विद रास्पबेरी पाई फॉर अटेंडेंस लाइक प्रोजेक्ट? बिल्कुल आप कर सकते हो। ओपनसीवी इज फॉर इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। ओपनसीवी से आप इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हो। आप अटेंडेंस कैसे मार्क करना है ये आपकी हेडेक है। ओपनसीवी अटेंडेंस नहीं करता है, वो इमेज प्रोसेसिंग करता है। इमेज प्रोसेसिंग मतलब फेस रिकॉग्नाइज करना है, जो भी करना वो काम वो करेगा। तो जैसे रजत गुप्ता बता रहे हैं कि 5 टाइप्स ऑफ क्लास ऑफ आईपी, तो यस, सो देयर आर सो मेनी टाइप्स, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप से इसको पास करना होता है। तो 1999 में ही ये चीज समझ में आ गई थी कि हमारे जो IPv4 एड्रेस है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब आईपी आया, इंटरनेट आया, तब उसको नहीं पता था कि वो इतने तेजी से पॉपुलर हो जाएगा। इसीलिए IPv6 आया। IPv जो है वो आया आपका, और हम IPv6 अब जल्दी ही रिप्लेस होने वाला है। तो IPv6 128 बिट का होता है, जो कि 32 बिट से बहुत ज्यादा है। तो इसमें बहुत सारे आईपी एड्रेसेस हैं कि हर इंसान के लिए आई थिंक कई लाखों आईपी एड्रेसेस हैं। इस वजह से अब हमें डायनेमिक आईपी की IPv6 में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम इस एडवांस पोर्शन पे आ चुके हैं। अनुराग, आप इमेज प्रोसेसिंग से अटेंडेंस नहीं कर सकते, अटेंडेंस अलग है, इमेज प्रोसेसिंग अलग है। इमेज प्रोसेसिंग में जो ओपनसीवी है सिर्फ आपको ये हेल्प करेगा कि फेस रिकॉग्नाइज कर दे। बाकी का कोड, बाकी का एल्गोरिथम, अटेंडेंस का नाम एंट्री करना, उसका पेज बनाना,
ठीक है, उसका सारी चीज करना, वो सब आपको करना है ना। ये अगेन जो ये सवाल आप पूछ रहे हैं, आप सवाल ऐसे पूछ रहे हैं कि आपने ओपनसीवी इंस्टॉल किया और आपका अटेंडेंस बन गया, ऐसा नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जब तक आप उसकी डिटेल में जाएंगे कि अटेंडेंस बनाना कैसा होता है, तब तक आप उसको नहीं बना पाएंगे, राइट। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसका स्कोप क्या है। तो स्कोप ऑफ ओपनसीवी इमेज प्रोसेसिंग, स्कोप मतलब वो इमेज प्रोसेसिंग से ज्यादा का काम नहीं कर सकता। तो अगर आपको अटेंडेंस, तो मान लीजिए आप रास्पबेरी पाई में ओपनसीवी यूज कर रहे हैं, तो ओपनसीवी इज अ लाइब्रेरी फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है, इट इज नॉट लैंग्वेज डिपेंडेंट। तो ओपनसीवी जो है दैट कैन बी यूज इन पाइथन। तो अगर आप पाइथन लैंग्वेज से इमेज प्रोसेसिंग से अटेंडेंस बनाना चाहते हैं, तो पाइथन लैंग्वेज में आप फेस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको पाइथन में अटेंडेंस का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसके वेब पेजेस बनाना, इंटरफेस बनाना, वो सारे काम जो है वो आपको करना पड़ेगा। yes, again रविकांत, it can detect your retina, but retina scanner आपको चाहिए। रेटिना डिटेक्ट करना डिफिकल्ट काम नहीं, इसके बहुत सारे एल्गोरिथम्स अवेलेबल है, और सीएसआईटी वाले बच्चे तो इसको बहुत फटाफट कर लेते हैं क्योंकि लाइब्रेरीज अवेलेबल है, सारी चीजें हैं, बट रेटिना स्कैनर महंगा होता है। स्कंद पूछ रहे हैं, सर वी हैव टू यूज प्रॉपर एमएल क्लासिफिकेशन मॉडल्स फॉर दिस। देखिए स्कंद, आई एज्यूम यू आर फ्रॉम सीएसआईटी बैकग्राउंड, so again I would like to clarify कि जो आपका ML है वो क्या होता है। ML इज सेल्फ लर्निंग, राइट। तो सेल्फ लर्निंग का मतलब है कि मान लीजिए आपने से सुदेश, मेरा नाम सुदेश है, सुदेश के आपने 10 फोटो दिए ML को और उसको बोला ये सुदेश है, ये सुदेश है, ये सुदेश है, ये सुदेश है, ठीक है, 10 बार बताया। फिर आपने ना आपका नाम क्या है, आपका नाम है स्कंद, ओके, स्कंद के 10 फोटो दिए और ML को बोलो कि ये स्कंद है, ये स्कंद है, ये स्कंद है, स्कंद है, ठीक है। तो ML जो है वो अपना एल्गोरिथम डेवलप करेगा और नेक्स्ट टाइम जब आप स्कंद की फोटो दोगे तो आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो स्कंद है, और अगर आपने सुदेश की फोटो दी तो आइडेंटिफाई कर लेगा सुदेश। तो आपने अपने मशीन को, अपने प्रोग्राम को ये नहीं समझाया कि फेस रिकॉग्नाइज कैसे करना है, ठीक है, आपने उसको कुछ नहीं समझाया, उसने अपने आप सीख लिया, उसको मशीन लर्निंग कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि मशीन लर्निंग हर जगह यूज होती है। ये भी अगेन अगर आप सीएसआईटी डिपार्टमेंट से हैं, आई एम नॉट श्योर आप हैं कि नहीं है, अगर नहीं भी है जो भी है, तो आपको ये लगता है कि एमएल हर जगह लगाना है, ऐसा नहीं है। देयर आर स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स जिसमें आपको ट्रेन, तो एमएल में इंपॉर्टेंट क्या होता है, ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, आपको ट्रेन करना पड़ता है क्योंकि उसको नहीं पता कैसे करना है, तो ट्रेनिंग करके आप सीखता है, जैसे इंसान सीखता है, ठीक है। बट देयर आर एल्गोरिथम्स जिसमें आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आपको लर्निंग करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फोटो देंगे और वो आपको डेटाबेस में केवल 2 फोटो देनी है, एक स्कंद की, एक सुदेश की। तो उस एल्गोरिथम को पहले से ऐसा प्रिपेयर किया गया है और ट्रेन किया गया है, उस एल्गोरिथम की इक्वेशंस ऐसे बनाई गई है कि वो स्कंद और सुदेश को बिना लर्निंग के, बिना क्लासिफिकेशन के भी आइडेंटिफाई कर सकता है, राइट। तो ये थोड़ा जो सटल डिफरेंसेस हैं ये समझने बहुत जरूरी है कि कहाँ पे एमएल यूज करना है और कहाँ पे नॉर्मल एल्गोरिथम। नॉर्मल एल्गोरिथम वहां यूज करने हैं जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी अगर बेस्ट एल्गोरिथम अवेलेबल है, जैसे फेस रिकॉग्निशन का एल्गोरिथम जो है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां आपको उसकी एमएल की जरूरत नहीं है, राइट। होप आई एम क्लियर। Sahil, while using color variation, I think attendance can be done through Python through image processing. I think Sahil, जो है जो अटेंडेंस वाला जो चीज आई है, ये जो सवाल है ये आप जिस तरीके से पूछ रहे हैं सभी लोग, आपको लग रहा है ये बिल्कुल सिंपली हो जाएगा। अगर ये चीज इतनी आसान होती तो आपके सभी जो है सभी कॉलेजेस में अटेंडेंस फेस रिकॉग्निशन से ही होती। इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एल्गोरिथम एमएल एआई, इतने बेस्ट एल्गोरिथम दुनिया में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी फेस रिकॉग्निशन इज नॉट परफेक्ट टेक्नोलॉजी, इसमें अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो बिफोर आस्किंग सच क्वेश्चंस, पहले आप इमेज प्रोसेसिंग सीखिए, पहले आप ये देखिए कि इसमें इतने खतरनाक एल्गोरिथम्स कौन से होते हैं, एमएल में क्या होता है, ठीक है, एमएल में न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है, एचएमएम क्या होता है। ऐसे एल्गोरिथम के बारे में जब आपको समझ आएगा तब आपको पता चलेगा कि आप ये जितनी आसानी से सवाल पूछ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है इन सब चीजों को बनाना। इट इज नॉट एज कि आपने टिंकर कैड में आपने एक ब्लॉक ले लिया जो फेस रिकॉग्नाइज करता है और सारा काम किया। आपके जो सारे सवाल है वो ऐसे ही है। आपको लगता है कि आपने अगर ओपन सीवी लिया तो उसमें एक ब्लॉक मिल जाएगा जो फेस रिकॉग्नाइज कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। ओके, सो विश्वेश सोनी बोल रहे हैं, सर व्हाट इज डायनामिक आईपी। तो डायनामिक आईपी मैंने आपको यही बताया, तो समझ लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भोपाल में 2 तरीके के लोग रहते हैं, एक मूल निवासी और एक प्रवासी, ठीक है। मूल निवासी का अर्थ होता है जो भोपाल के लोकल लोग हैं, और प्रवासी जो बाहर से यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है।
अब हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि हर व्यक्ति का एक नंबर होगा, हम भोपाल में रहने वाले सभी व्यक्ति को एक नंबर असाइन करेंगे, बट हमारे पास लिमिटेशन ही है कि से हम 20 लाख से ज्यादा नंबर नहीं दे सकते या 5 लाख से ज्यादा नंबर नहीं दे सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो भोपाल के मूल निवासी है उन सबको परमानेंट नंबर एलोकेट किया, और जो बाहर के लोग आए हैं उसको टेम्पररी नंबर एलोकेट किया। जब तक वो भोपाल में है तब तक आपका टेम्पररी नंबर है, जैसे आप भोपाल छोड़ के चले जाएंगे वो नंबर फ्री हो जाएगा, किसी और को मिल जाएगा, राइट। तो इस चीज को हम डायनेमिक आईपी कहते हैं। तो डायनेमिक आईपी कुछ इसी तरीके से हुआ कि जब आप मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करते हैं तब आपको एक टेम्पररी आईपी प्रोवाइड होता है, जो सिर्फ जब तक आपका सेशन है तब तक चलेगा, और जब आप अपना मोबाइल फोन बंद कर देंगे तो वो आईपी खत्म हो जाएगा और किसी और को वो आईपी मिल जाएगा। जबकि वेबसाइट फिक्स होती है, सर्वर्स फिक्स होते हैं, तो उनके जो आईपी होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो स्टैटिक आईपी जो है वो अगर आपको चाहिए तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। तो आपको जो डोमेन नेम आप जो बोलते हैं, जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं, जो डोमेन नेम के लिए जो आप पे करते हैं, डोमेन नेम इज नथिंग बट स्टैटिक आईपी, राइट। उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, और डायनेमिक आईपी के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। ओके, सो अमन सोनी पूछ रहे हैं, सर मैं घर के लिए ऑटोमेटिक वाटर पंप बना रहा हूँ, वो मॉडल में तो सही वर्क कर रहा है बट प्रोजेक्ट में फिट करने पर प्रॉब्लम हो रही है। तो अमन, मैंने यही कहा कि जब आप प्रैक्टिकल डोमेन में जाएंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो ऑब्वियसली आपने जो यहाँ मैसेज किया, इस मैसेज से आपको मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता जब तक मैं आपके हार्डवेयर को नहीं देखूंगा, आपके सर्किट को नहीं देखूंगा, आपने क्या प्रोग्रामिंग की है वो नहीं देखूंगा, तब तक मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। तो ये सवाल जो आपने किया ये बिल्कुल उसी तरीके से कि सर मुझे फेस रिकॉग्निशन बेस्ड एक अटेंडेंस सिस्टम बनाना है, मैं इसको कैसे बनाऊं। तो ऐसे डायरेक्ट सवाल से मैं कोई जवाब नहीं दे सकता कि आपका प्रॉब्लम है, मैं कैसे प्रॉब्लम, आपको सर्किट बताना पड़ेगा, आपको प्रोग्राम बताना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली इस डाउट क्लियरेंस सेशन में हम कवर नहीं कर सकते। सो संजय सर हैज गिवन अ गुड एडवाइस, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो विश्वेश पूछ रहा है, सर क्या हम अपना डायनेमिक आईपी चेंज कर सकते हैं। आप नहीं चेंज कर सकते विश्वेश। आप जब भी, जैसे आपने, अगर आप 4G यूज कर रहे हैं, आप एक जियो यूज कर रहे हैं, तो जैसे आप जियो नेटवर्क से कनेक्ट होंगे और अपना इंटरनेट चालू करेंगे तो जियो आपको आईपी एड्रेस देगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में आईपी एड्रेस नहीं है। हाँ, हैकिंग वगैरह में बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आप अपना आईपी एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हो, वो एक अलग ही चीज है, ठीक है। तो वो एक अलग डोमेन है, बट इन जनरल जो आईपी एड्रेस होता है वो डायरेक्टली आपको अलोकेट होता है, और वो आपका जो सर्वर प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, वो देता है। आपको जो चेंज करना है वो एक अलग पूरा डोमेन है, उसमें इज नॉट अ फोकस ऑफ दिस वर्कशॉप। चलें आगे बढ़ते हैं। तो कंटेंट तो मेरे पास बहुत सारा है। ओके, चलिए। तो सिंस वी आर अबाउट क्लोजिंग टाइम और मुझे एक डेमोन्स्ट्रेशन भी शो करना है, तो मैं क्विकली आगे की स्लाइड कवर कर लेता हूँ। तो IPv6 जो है आपका इस तरीके कैसा होता है, इसमें 128 बिट्स का एड्रेस होता है। तो UDP IP, जो बाकी लोग हैं स्लाइड के स्नैपशॉट ले सकते हैं फटाफट, ताकि आप इसको बाद में पढ़ सके। तो UDP जो है ये प्रोटोकॉल 1980 में डेवलप किया था, ये लाइट वेट है और ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, इसमें कोई गारंटी नहीं कि डेटा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ये हम इंटरनेट यूजुअली IP एड्रेस बेस्ड है, मतलब इसमें हम जो डेटा पैकेट होता है वो IP पैकेट होता है, बट कोई और पैकेट भी हम ले सकते हैं। ये कनेक्शन लेस है, मतलब इसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है। जैसे आपने एक SMS भेजा तो SMS पहुंचा नहीं पहुंचा और सामने वाले ने पढ़ा नहीं पढ़ा, इसको हम कनेक्शन लेस कहते हैं। इसके कुछ सारे फीचर्स होते हैं, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि डिलीवरी होगी, ऑर्डरिंग प्रॉपर से पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और डुप्लीकेट भी पहुंच सकता है। ऐसा भी कई बार प्रॉब्लम आईपी में होती है कि एक डेटा का डुप्लीकेट डेटा भी पहुंच सकता है, तो हमें ये भी बताना जरूरी है कि कौन सा डेटा डुप्लीकेट है और कौन सा नहीं। ये कुछ भी इस टाइप के फीचर्स प्रोवाइड नहीं करता। TCP IP तो आपका जितना भी इंटरनेट पे कम्युनिकेशन हो रहा है वो ज्यादातर TCP IP पे होता है, क्योंकि वो ही रिलायबल कम्युनिकेशन हम यूज कर रहे हैं। बहुत हाई स्पीड अनरिलायबल कम्युनिकेशन के लिए हम UDP यूज करते हैं। तो TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये रिलायबल है, ठीक है। रिलायबल कैसे है, अगर डेटा पहुंचा तो एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है, एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो ये फिर से डेटा भेजता है, तो रिलायबल हो जाता है। ऑर्डरिंग ये मेक श्योर करता है हर डेटा को नंबर अलोकेट करता है। तो HELLO अगर ये भेजेगा तो H को नंबर 1 देगा, E को 2 देगा, L को 3, L को 4 और O को 5, ऐसे नंबर भेजेगा। तो जब वो वहां एंड पे पहुंचेंगे जहां पे रिसीवर है, उसको भी नंबरिंग के साथ मिलेगा, तो वो उसको प्रॉपर जोड़ सकता है। एरर चेकिंग इसमें पॉसिबल होती है, डेटा पहुंचा, सही पहुंचा कि गलत पहुंचा, इसके भी इसमें ऑप्शंस होते हैं। और ये होस्ट और वाया IP नेटवर्क हम इसको यूज करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, फाइल ट्रांसफर,
ठीक है। ये सारी जो चीजें होती है, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें टीसीपी आईपी के थ्रू ही होती है। अभी जो आप ये वेबिनार देख रहे हैं, ये भी टीसीपी आईपी के थ्रू ही हो रहा है। तो टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड। तो इसमें ऐसा होता है कि पहले दोनों नेटवर्क के बीच में कनेक्शन बनता है, ठीक है, कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, फिर डेटा ट्रांसमिट होता है। द सर्वर मस्ट बी लिसनिंग। सर्वर जो है हर समय सुनना चाहिए। अगर सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो टीसीपी आईपी कनेक्शन आपका ब्रेक हो जाएगा। इसमें हैंडशेकिंग होती है। हैंडशेकिंग मतलब आप जो डेटा भेज रहे हो उसका रिप्लाई आएगा। ट्रांसमिशन, अगर डेटा नहीं पहुंचा तो फिर से ट्रांसमिट होंगे। और एरर डिटेक्शन भी इसमें ऐड होती है ताकि आपका जो डेटा कम्युनिकेशन है वो काफी रिलायबल हो जाए। फिर HTTP ऑप्शन होता है। HTTP ऑप्शन जो है इसके ऊपर और एडवांस लेयर है। तो HTTP ऑप्शन जो है वो HTML फाइल्स और डिफरेंट CSS फाइल्स को भेजने का एक प्रोटोकॉल है, और इसको हम इसकी मदद से भेज सकते हैं। तो आई जस्ट ब्रीफली टॉक अबाउट इट। तो ये जो है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए स्पेसिफिकली डेवलप किया गया था। ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉन्सेप्ट पे काम करता है, क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसमें जब भी आप ब्राउजर में कोई ईमेल आईडी टाइप करेंगे या कोई भी डोमेन टाइप करेंगे, तो एक तरीके से आप इसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो और HTTP उसका एक रिस्पॉन्स आपको देगा, ठीक है। तो दिस इज ब्रॉडली, आई होप आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो HTTP में क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है। आप डायरेक्टली क्लाइंट को डेटा भेजते हैं, क्लाइंट जो है सर्वर को डेटा भेजता है और सर्वर जो है आपको रिस्पॉन्स करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है। MQTT जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल डेवलप किया गया था अभी के लिए और काफी पॉपुलर है। तो MQTT जो है वो HTTP से काफी फास्ट है या बाकी अदर प्रोटोकॉल से काफी फास्ट है, क्योंकि जो है HTTP जो है वो फाइल ट्रांसफर पे फोकस करता है। तो ये फाइल ट्रांसफर पे प्रिंसी गुप्ता आपका माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। प्रिंसी गुप्ता प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, सो बेसिकली जो है आपका MQTT प्रोटोकॉल जो है वो इन सारी चीजों को ध्यान रखता है। तो अगर अपन ब्रीफली जो है MQTT प्रोटोकॉल समझने की कोशिश करें तो ये एक सबसे अच्छा हमारा कंपैरिजन है। अभी हमने देखा था कि HTTP में क्लाइंट सर्वर डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर आपको गूगल से इंटरेक्ट करना है तो आपको डायरेक्ट आप गूगल को मैसेज भेजेंगे, डायरेक्ट गूगल आपको रिप्लाई करेगा। लेकिन MQTT में बीच में एक ब्रोकर होता है, ठीक है, ये आप हैं सब्सक्राइबर्स, ये आपका गूगल है, और बीच में एक ब्रोकर होता है जो आपके काम को आसान बनाता है। तो आप डेटा इस ब्रोकर को भेजते हैं, ब्रोकर आपके पब्लिशर को भेजता है, पब्लिशर ब्रोकर को रिप्लाई करता है और ब्रोकर जो है आपको भेजता है। इस वजह से जो है डेटा थोड़ा फास्ट हो जाता है, क्विक हो जाता है, और इसमें बहुत सारे आपके एडवांटेजेस रहते हैं। तो अभी क्विकली इसको मैं स्किप करूंगा। COAP भी जो है एक HTTP का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है जो लो रिसोर्सेस वाले हार्डवेयर के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आप अपने IoT डिवाइसेस को डायरेक्ट वेब पेज से कनेक्ट करना चाहते हैं, वेबसाइट से डायरेक्ट डेटा भेजना चाहते हैं और वेबसाइट के फीचर्स की तरह उसमें काम करना चाहते हैं, तो COAP प्रोटोकॉल इसमें यूज किया जाता है जो HTTP में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो COAP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें जो भी डेटा आप भेज रहे हैं आप बहुत ही इजीली उसको HTTP में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूजुअली ये IP एड्रेस पे काम करता है, पर इसको SMS जैसे प्रोटोकॉल्स पे भी भेजा जा सकता है। आप मोबाइल फोन के SMS प्रोटोकॉल का यूज करके भी COAP में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन जो मैंने बताया कि ये सारे प्रोटोकॉल है, इन सारे प्रोटोकॉल को सपोर्ट करने वाला जो भी डिवाइस होगा वो आप यूज कर सकते हैं, आप किसी लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है। तो जो कुछ पॉपुलर IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, तो व्हाट आर दिस IoT क्लाउड प्लेटफॉर्म्स? दीज आर द प्लेटफॉर्म जो आपको रेडीमेड वेबसाइट्स प्रोवाइड करते हैं और रेडीमेड आप इन पे अपने IoT के डेटा भेज सकते हैं और उसको देख सकते हैं। आप चाहें तो कभी भी अपना खुद का पर्सनल प्लेटफॉर्म बना सकते हैं और उसके लिए आप किसी भी IT डोमेन के जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप रेडीमेड यूज करना चाह रहे हैं तो आप इन प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, अगर आप खुद का बनाना चाह रहे हैं तो आप खुद का भी बना सकते हैं, बस आपको प्रोटोकॉल समझना जरूरी है कि कैसे क्या हो रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर और अमेजन वेब सर्विसेज काफी पॉपुलर है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में यूज की जाती है, इनमें बहुत अच्छे लेवल के ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर हम थोड़े फ्री टाइप के या हम प्रोजेक्ट लेवल में जिनको यूज कर सकते हैं, इसमें थिंकस्पीक और यूबी डॉट्स हैं। तो इसमें कुछ फ्री वर्जन्स अवेलेबल है जिसकी वजह से हम कुछ एटलीस्ट प्रोजेक्ट लेवल बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लेवल पे ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो अभी जो मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ वो है IoT बेस्ड टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसका लाइव डेटा हम सर्वर पे पोस्ट करेंगे और सर्वर पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे क्या वो डेटा जो है वो आपको भेज रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसमें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका ऑर्डिनो बोर्ड है
हमने इसमें 2 शील्ड बनाई है, हमने खुद की शील्ड डिजाइन की है, 2 शील्ड हमने इसमें डिजाइन की है। पहली जो शील्ड है दैट इज वाईफाई मॉड्यूल शील्ड। तो ये जो एग्जांपल है डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑप्शन से कनेक्टेड है। तो जो वाईफाई शील्ड है आपकी, ये हमने ये आपकी सेकंड शील्ड, हम ये जो शील्ड पहली जो शील्ड दिख रही है आपको, ये वाईफाई शील्ड है जो वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। और जो सेकंड शील्ड जो आपको दिख रही है दैट इज बेसिकली एलसीडी शील्ड, ताकि हम एलसीडी पे कुछ ना कुछ मैसेजेस देख पाए, राइट। तो ये हमने जो यूज किया उसमें ऑर्डिनो बोर्ड, नॉर्मल जो ऑर्डिनो उनो है वही यूज किया हुआ है। ये हमने खुद का एक बोर्ड डिजाइन किया वाईफाई जो ESP8266 मॉड्यूल पे बेस्ड है ये शील्ड। उसमें हमने एक जो है ये मॉड्यूल कनेक्ट किया, और ये जो मॉड्यूल है ESP8266 ये मेरे UART से कनेक्टेड है। मेरा ऑर्डिनो जो है इसको अलग अलग जो कमांड या इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो UART की मदद से दे रहा है। ये हमारी एलसीडी शील्ड जो हमने बनाई। क्योंकि अभी मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, लेकिन मैंने अपने कैमरा पे ट्राई किया तो एलसीडी बहुत ज्यादा ब्राइट होने की वजह से आपको टेक्स्ट नहीं दिख रहा था, दिखेगा क्योंकि वो टेक्स्ट उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि अभी जैसे रूम का जो टेम्परेचर है वो कैसा आ रहा है यहाँ पे, राइट। और इसमें हमने जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो आईसी यूज की, LM35 यूज की। टिंकर कैड में LM36 यूज हुआ है, जो LM35 का एक वर्जन है, बट मार्केट में TM36 यूजुअली अवेलेबल नहीं होती, LM35 इजीली मिल जाती है, इसलिए हमने इसका यूज किया। फिर अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये यूवी डॉट्स पे हमने एक फ्री सर्वर बनाया जिसमें ये मुझे पूरा डेटा का इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। जैसे आप ग्राफिकल फॉर्म में इसको देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का एक गेज मीटर की तरह मुझे शो कर रहा है अभी क्या टेम्परेचर है। यहाँ पे ये आपको एक थर्मामीटर की तरह शो कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है, और यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं अभी आपको इसके साथ साथ जो है वो डेमो आपको दिखाता हूँ। ओके, सो ओके, तो आपकी स्क्रीन पे ये अभी लाइव आपको दिख रहा है, ठीक है। आई होप आप इसको लाइव देख पा रहे हैं। तो ये आपके जो है ये वेबसाइट पे हमने एक लिंक क्रिएट की है, मैं इस लिंक को चैट बॉक्स में आपका सेंड कर रहा हूँ। तो आप भी लाइव इसको अपने गूगल में भी जाके देख सकते हैं, अपने ब्राउजर में भी जाके देख सकते हैं। अनुराग, यूवी डॉट्स फ्री है फॉर प्रोजेक्ट पर्पजेस। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये आज का डेटा रखेगा, कल तक ये डेटा इसको इरेज कर देगा। और इसकी जो वेबसाइट है वो सारे, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स अभी ऐड किए हुए हैं। ये प्रोजेक्ट मैंने नहीं बनाया, मैंने ऑफिस में ही बोल दिया था बनाने के लिए, तो उन्होंने बताया कि अभी इसमें इतने अच्छे अच्छे फीचर्स आ गए कि ऑटोमेटिकली ईमेल कर देता है, आपको कॉल कर देता है, ये सारे फीचर्स इसमें आए हुए हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसमें 10 SMS, यू हैव रीच योर अकाउंट लिमिट, स्टेम अकाउंट्स जो है उसमें 10 SMS और 1 वॉइस कॉल, इतना फ्री है। इसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये फ्री है, आपके प्रोजेक्ट के लिए फ्री है। आप अपने प्रोजेक्ट को आराम से इसमें बना सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में लेके जा सकते हैं, मेजर प्रोजेक्ट आप इस पे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कमर्शियल प्रोडक्ट लेंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर हर बार अलग अलग वेबसाइट यूज नहीं करना चाहेगा, वो उसके लिए आपको पे कर रहा है, ठीक है। तो बेटर इंटरफेस चाहेगा, तो उसके पेड वर्जन भी है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि डेटा भी अपडेट हुआ, ठीक है। मैंने लिंक आप में डाल दी, सभी लोग इस लिंक पे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस लिंक पे जो भी आप क्रोम में जाएंगे तो आप इस डेटा को देख सकते हैं। यहाँ पे हर सेकंड जो है ये डेटा अपडेट हो रहा है, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन के सामने आपको लाइव हार्डवेयर भी दिखा रहा हूँ जो मेरे सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक है। मैं 2 मिनट के लिए शेयरिंग स्टॉप करूंगा ताकि आप अच्छे से इसको देख पाए। तो ये मेरा हार्डवेयर है, ऑब्वियसली एलसीडी बहुत ज्यादा ब्राइट है तो फिर इस वजह से इसमें मुझे मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। इसमें आप देख रहे हैं शील्ड है, बहुत सारी एलईडी है। ये इस टाइप का शील्ड हमने बनाया, ये अभी कंप्यूटर की पावर से ही चल रहा है। प्लस साथ साथ में इसमें हमने ये टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है LM35, ठीक है। तो इसमें ये जो आपकी सबसे फर्स्ट लेयर है वो आपकी ऑर्डिनो है, उसके बाद आपका वाईफाई है, वाईफाई शील्ड है, उसके बाद जो है आपका एलसीडी शील्ड है। तो हम इसके पहले जो IoT वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराते थे वो ऑब्वियसली फिजिकल लोकेशन पे जाके हम कराते थे।
तो जैसे हम आपके UIT RGPV में आके मान लीजिए वर्कशॉप कराते हैं, तो उसमें हम इस हार्डवेयर पे आपको वर्क करना सिखाते हैं कि कैसे आप डायरेक्टली हार्डवेयर पे प्रोग्राम करें और वही वर्कशॉप में बैठे बैठे किस तरीके से आप अपना डेटा लाइव सर्वर पे पोस्ट करें और फिर बाद में उन प्रोजेक्ट को आप आराम से कहीं और यूज कर सकते हैं। बट चूंकि ये वेबिनार है, वेबिनार में फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो मैं जस्ट आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से हम चीजें यूज की। तो जो शील्ड कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अब आप देखिए शील्ड की वजह से आपको वायरिंग के झंझट से और पीसी और आपके कनेक्शन लूज कनेक्शन होने के झंझट से बचना पड़ा है। तो अभी भी ये थोड़ा सा वायर फॉर्म में हमने इसको रखा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर को वो इसलिए रखा है ताकि अगर हम किसी डिवाइस को, किसी गर्म होने वाले डिवाइस को अगर हम देखें तो हम उसको देख सकें, राइट। तो मैं अगेन अपनी जो स्लाइड है वो फिर से शेयर कर देता हूँ। अभी जो आपको टेम्परेचर दिख रहा है वो 30 डिग्री के अराउंड दिख रहा है। ठीक है, तो अब मेरे पास एक छोटा सा लाइटर है और मैं इस लाइटर की मदद से इसको इसके टेम्परेचर में चेंज करूंगा। इसको मैं थोड़ा जलाऊंगा। आई होप आप देख पा रहे हैं क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ। तो मैंने इसको गर्म किया। अब आपकी जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर जो है टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। हम थोड़ा वेट करते हैं। जस्ट थोड़ा अपन वेट कर लेते हैं क्योंकि शायद डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा किसी वजह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 34 डिग्री अभी टेम्परेचर आ गया है। 3:08 पे यहाँ पे डेटा आया है। अब मैं इसको एक बार और गर्म करने की कोशिश करता हूँ। सर ये जो लाइटर से हीटिंग कर रहे हैं अपन, तो इसको शॉर्ट टाइम के लिए करना है ना? हाँ, ऑब्वियसली शॉर्ट टाइम के लिए करना है, बट ये टेम्परेचर सेंसर काफी रोबस्ट है तो इतनी जल्दी जलता नहीं है। तो अभी आप ओके। देख सकते हैं तो मेरे एलसीडी पे 52 डिग्री तक, अभी 60 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया। ऑब्वियसली शॉर्ट टाइम ही करना है, ज्यादा टाइम करेंगे तो सब जल जाएगा। मैं तो आपको सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इसको ओके। ठीक है। आई होप इट्स विजिबल क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन नहीं देख पा रहा हूँ, राइट। तो आपका आप देख सकते हैं जो डेटा है, आपका डेटा भी रियल टाइम में यहाँ पे चेंज हुआ है 48 डिग्री, 60 डिग्री, और आप एक कर्व में स्पाइक देख सकते हैं। और आपका गेज भी आगे बढ़ गया है, थर्मामीटर भी ऊपर चला गया है। अब थोड़ी देर बाद ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो ठंडा होने से अब आपका जो टेम्परेचर है वो कम होगा। तो हम पूरा ठंडे होने तक का वेट करते हैं। ठीक है, कि कैसे क्या है। सो शुभम, यस, शुभम ऑलरेडी बता रहे हैं कि वाईफाई मॉड्यूल जो है ESP8266 इज यूज्ड एज अ वाईफाई मॉड्यूल। उसको वाईफाई मॉड्यूल के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, सो दिस वाज द डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसमें अगर आपके डेमोन्स्ट्रेशन में आपके और कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो अब यूवी डॉट्स पे आप प्रोफाइल कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे शेयर नहीं की हैं क्योंकि ऑब्वियसली उसको बताने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। ऐसी थिंग्स भी एक चीज है। और आई थिंक शुभम ने बताया कि एडाफ्रूट पे भी आप इस टाइप के प्रोफाइल बना सकते हैं। वैसे काफी सारे फ्री सर्वर हैं जिसकी मदद से आप इसको कर सकते हैं। आदित्य, इसका जो कोड है वो मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे पास अवेलेबल है क्या, क्योंकि मैंने इसको नहीं बनाया। तो मे भी आप आदित्य मुझे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कोड वहां पे आपसे शेयर करूंगा। बट अगेन डोंट थिंक कि आपको कोड मिल गया तो आप बना लोगे, क्योंकि वो कोड मेरे यहाँ के वाईफाई पासवर्ड से फिक्स होगा। उसमें बहुत सारी और चीजें होंगी, अकाउंट भी फिक्स होगा, क्योंकि जो अकाउंट हमने बनाया है ये अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। इस अकाउंट पे ही डेटा भेजेगा, आपके अकाउंट पे डेटा नहीं भेजेगा। तो ये एज्यूम मत कीजिए कि आप सिर्फ कोड से सारी चीजें सीख लेंगे। बट मैं आपको कोड शेयर कर दूंगा अगर आप मुझे ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट करें। Okay, so I think from my side it is that's it, and I hope you enjoyed the whole session. At the मतलब वैसे तो कल फॉर्मली हम डिस्कस करेंगे, तो कल का सेशन थोड़ा फॉर्मल रहेगा। तो अपन आज थोड़ा सा चाहे तो ऑलरेडी 10 मिनट ओवरशूट कर चुके हैं। तो संजय सर अगर अलाउ करें तो हम पार्टिसिपेंट्स को भी बोलने के लिए कह सकते हैं।
कल तो वैसे भी हम बात कर सकते हैं। तो जस्ट लास्ट सम क्लोजिंग थॉट्स फ्रॉम माय साइड। डेफिनेटली 14 दिन में बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं और बहुत सारी चीज़ मैंने बताने की कोशिश की। मैं जानता हूँ कई सारे पार्टिसिपेंट्स काफ़ी एडवांस भी होंगे, काफ़ी बेसिक भी होंगे, बट सबको सेम लेवल पे लाने की मैंने पूरी कोशिश की। काफ़ी एफर्ट्स दिए, वो आप देख सकते हैं सारे इवेंट्स में, सारे सेशन में मैंने काफ़ी एफर्ट्स दे के सारी चीज़ें आपसे शेयर किया। और आपसे भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपने जो लर्निंग प्रोसेस है वो जो है आप इसमें कंटिन्यू करें, नेट पे सीखें, बहुत सारी चीज़ें करें। अनुराग पूछे सर इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करें, तो आपको एक रिज्यूमे एटलीस्ट मुझे मेल करना पड़ेगा। आपने अगर रिज्यूमे नहीं बनाया है तो आपको रिज्यूम बनाना पड़ेगा। मेरा ईमेल आईडी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर में भी आपको शेयर कर चुका हूँ। लेकिन ये कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा नहीं कि आप दंदनाते मुझे कभी भी फ़ोन करें। मेक श्योर कि इसका ज़रूरत हो, कुछ अच्छा बात हो तो आप उसको शेयर करें। तो ये मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो आई ऑल्सो लाइक टू थैंक संजय सर, शुभम। मेरा इंटर्नशिप, शुभम ने हमारे यहाँ से इंटर्नशिप की हुई थी। शुभम से भी मेरा इंटरेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। वी गॉट टू नो थ्रू एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था जहाँ पे ही अप्लाइड फॉर इंटर्नशिप एंड ही वाज द ओनली कैंडिडेट हु गॉट सिलेक्टेड out of 15-20 because we are very strict and hard nosed in selecting interns. तो यहाँ पे आप जितने भी आई थिंक 200 पार्टिसिपेंट्स में से अगर 200 के 200 भी अप्लाई करते हैं तो आई डाउट कि उसमें से एक या दो भी सिलेक्ट हों, बिकॉज वी आर वेरी मतलब वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द नॉलेज एंड द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू हैव वर्क. So through Shubham, I got introduced to Sanjay sir, and that's how we are having this workshop. So I'm thankful to both Shubham and Sanjay sir, and also to UIT, RGPV and TechWave. So formally तो मैं कल सब करूँगा ही, but informal level पे जो कि actual होता है, formally तो हमको सब करना ही होता है, तो informal level जो actual होता है उसके लिए मैं सबको thanks कहूँगा, सर को, शुभम को, पार्टिसिपेंट्स को, कि उन्होंने इतने इंटेंस के साथ और इतने अच्छे साथ आपने जो है यहाँ पे अटेंड किया. So thank you so much to all of you. And tomorrow I wish very good luck for the test will be difficult. So जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं, अच्छे नोट्स बनाएंगे तो आप इजीली पास करेंगे, और अच्छे से नहीं बनाएंगे तो आप पास नहीं करेंगे. ठीक है. क्वेश्चंस विल बी डिफिकल्ट का मतलब है दे विल बी ट्रिकी, दे विल नॉट बी टाइम कंज्यूमिंग. वो ट्रिकी होंगे. अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बताएं आप उसको कर पाएंगे. कोई भी क्वेश्चन आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा. ठीक है. तो टेस्ट के साथ साथ अगर आप गूगल भी करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक का भी जवाब नहीं मिलेगा. तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, आप अपने नोट्स पे ध्यान दें. So from my side, thank you so much, and I hand over to Sanjay sir to close today's session and for final thoughts. Yeah, thank you, Sudesh. तो मैन तो टीचर जो है दैट इज द मैन पर्सन, नाइदर मी नॉर शुभम एंड नॉट एनीवन एल्स. टीचर जो है दैट विल अट्रैक्ट द पार्टिसिपेंट्स एंड दैट विल कीप द एंगेज होल क्लास. So I attended almost all the sessions, and I found that most of the participants were attentive. Yes. And they are with you, means they are nowhere, they are in the class. So it is the great achievement, we can say. Thank you so So much. this is from my side, and since I keep on learning new things, so I request all the participants, if they have any idea, anything, they can approach to me at UIT RGPB, and then we can develop something new for the society and for the nation and for the Bhopal or UIT or your college or anywhere. So even though means in my mind I have many new things, so I can share with them, and we can work together and brought something new for the future. कोई भी चीज है कितना भी डेवलप हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें स्कोप रहता है टू वर्क. तो वो उस थीम के साथ, उस लगन के साथ आप लोग काम करें, सीखें और सीखते रहें. बस यही हमारी तरफ से आपको सुझाव, और सभी को धन्यवाद. बेस्ट ऑफ लक कल के लिए. कल फिर मिलते हैं. ठीक है सुदेश. तो इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन लीव, एंड पार्टिसिपेंट कैन इंटरेक्ट विद मी इफ दे वांट टू हैव समथिंग. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. या Thank you, participants. so they are only asking for the feedback form, nothing else. Do you think my birthday that
तो कोई भी पार्टिसिपेंट जो भोपाल से हैं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के बाद में जब भी आपको समय मिलता है या कुछ ऐसा नया आइडिया ब्रेन में आता है, so they can come to UIT. I will be available most of the time, and then we can work together and develop something new. कल के सेशन में हम वाइस चांसलर को रिक्वेस्ट करेंगे, वो अगर अवेलेबल रहेंगे तो सभी से रिक्वेस्ट है कि उपस्थिति अपनी दर्ज करें और जो भी लास्ट मूवमेंट के जो क्वेश्चंस रहते हैं डिस्कस करें सुदेश के साथ। जो भी आपने सीखा है इन 14 दिन में, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और कल हो सकता है कि वाइस चांसलर बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे तो कोई भी फ्रीली बोल सकता है जो भी आपने सीखा है। एंड सबसे पहले तो वी हैव टू वर्क टू enhance the internet speed and the connectivity, because in last these 14 days we face a lot of problem. Every time you get disconnected and the speed is not that high, so your screen or your voice is not clear. So I request all of you to think and try to develop something new to enhance the speed of your connectivity. So this is from my side. If you have anything, you can discuss, or otherwise tomorrow we will be meeting again. सर सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा? क्या पूछ रहे हैं? सर सर्टिफिकेट वगैरह कब तक मिलेगा हम लोग को? देखिए, सर्टिफिकेट की चिंता ना करें, सीखें और काम करें। सर्टिफिकेट तो आ जाएगा, सर्टिफिकेट कहीं नहीं जाएगा। वो तो कर ही रहे हैं, बहुत इंटरैक्टिव सेशन था सर, बहुत अच्छा सेशन था, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन उसमें यह है कि आपका जो डेटाबेस है उसको तैयार करने में, एंड देन जो प्रिंट करेगा ऑनलाइन वो कितना समय ले रहा है ना, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो मे बी डे आफ्टर टुमारो आई विल सेंड वन फॉर्म in that you can fill your correct name, your college name, this and that, so that mistakes will be less, or you can get your actual certificate. Okay? Thank you so much, sir. Yeah. Yeah, I will share my mail ID tomorrow. Test timing पूछ रहे हैं तो that you can decide when you want to appear, in the beginning or in middle or at the end. Everything is indigenous. So shall I close? या कोशिश रहेगी, फिर से अरेंज करेंगे।
और आप लोग को बता दें कि इस बार हमारे पास 979 एप्लीकेशंस और रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसमें से due to the limitation of the software, we selected some 325. So the remaining group is still waiting. So I request tomorrow to our Vice Chancellor or the coordinator TechU to arrange a series of such type of workshop. So let's see. सर ये वाली जो क्लासेस हैं ये रिकॉर्ड हुई हैं क्या सर? That I cannot tell you whether it has been recorded or not, but that icon Sir, was because blinking. here Yeah. on the screen it's showing that it's recording. Yeah. So same thing I also have seen. So I don't know whether it is video or only voice, but something is going on. So I will find out. Yes, sir. Okay. Sir, like if we'll get this recording, so it would be helpful to us in future also, sir. That again I have to ask the administrative people. Sir, some of the things, yes, sir. Sir, if you can confirm and tell us. Yes. So means later on you can ask. So because I have to discuss with tomorrow is Sunday, so it may not be possible. Yes, sir. Okay, so later on we can have discussion and we can ask, and if possible, Yes, we sir. will. Thank you so much, sir. Either we will put on the RGPV site or whatever way. Okay. Okay, sir. Thank you so much, sir. So thank you all. I am closing the session. Tomorrow again we will meet. Thank you.